ہمارا موضوع ہے ایسٹرن ویلیوز اینڈ اور یوتھ، اور اہم موضوع ہے ہمارے آج کل کے مسائل جو ہیں. اپنے معزز مہمانوں کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے قرآن کا باقاعدہ آغاز کریں. میری آواز خراب ہے آج تھوڑی سی آ رہی ہے نا، اس کو ایسے ہی برداشت کیجیے گا. صبح پراٹھا کھایا تھا بھائی اس لیے تو میں سب سے پہلے اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں احمد حسن صاحب کو. ہمارے ایڈیٹر بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. محمد احمد حسن صاحب دنیا ہمارے کے ایڈیٹر ہیں، جنگ اخبار کے ایڈیٹر ہیں. احمد صاحب کے ساتھ ایک اور احمد صاحب کے ہم نام لیکن تھوڑا سا آگے پیچھے احمد علی صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد علی صدیقی صاحب میزان مینجمنٹ شریعہ بورڈ کے ہیڈ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم احمد صاحب کے ساتھ مختلف فورمز کرتے رہے جس میں میزان بینک کے ساتھ بھی کیا مختلف ٹاپکس پہ معیشت کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے. لیکن آج جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم بشری روایات پہ بات کر رہے ہیں. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یار میزان بینک اور ایک بینکر کو اور ایک معاشی اس کو کیوں بلا رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار یہ ٹاپک ایسا ہے کہ سب سے ریلیٹ کرتا ہے. اس میں ضروری ہے کہ اگر معیشت دار ہے اس سے بات نہ کی جائے. اس لیے آپ کو جنرل دی بہت شکریہ آپ کا. آپ کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مس سوریا ملک. آپ سی آر ڈی کی ہیڈ ہیں اور ہم مختلف فورم آپ کے ساتھ کرتے ہیں. مس سوریا پلیز آپ سے بھی تشریف لائیے. یوتھ فورم سے کونسلر رہی ہیں آپ. نوجوانوں کو بہت سارے لوگ شاید جانتے ہوں، ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے. اب جو آخر میں آپ لوگ کہیں گے ہماری چیئر پرسن کو سب سے آخر میں بلا رہے ہیں. چیئر پرسن کو آخر میں اس لیے بلا رہے ہیں کہ چیئر پرسن کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے تعاون نہیں ہو رہا تو ہم یہ فورم نہیں کر پاتے. تو جب یہاں آئے تو پتہ چلے کہ چیئر پرسن آئی ہے آپ کی. میں ڈاکٹر صفیہ کو درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہمارا موضوع ہے مشرقی روایات اور ہماری اقدار، ہماری تہذیب. یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے کہنے کو، لیکن یقیناً جب ہم بات کریں گے تو ہر جگہ سنجیدگی رکھوں گا نہیں میں تاکہ آپ لوگ بیٹھے رہیں. اپنے اس فورم کے آغاز میں درخواست کروں گا ہمارے جو ایم ایف فورم کے فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں سید فاروق کہ وہ آ کے ویلکم نوٹ دیں ایم ایف فورم کی جانب سے، اور چیئرپرسن صاحب کا شکریہ ادا کریں، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کریں. سید محمد فاروق. السلام علیکم. میں ایم ایف ایم فورم ماس فار میڈیا اس کی جانب سے تمام مہمان کرام، خصوصی طور پہ چیئر پرسن اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر صفیہ صاحبہ کو، محترم احمد حسن صاحب سینئر جرنلسٹ ایڈیٹر دنیا اخبار، محترم احمد علی صاحب سینئر بینکر شریعہ ہیڈ میزان بینک، محترمہ سوریا ملک صاحبہ ایچ او ڈی سی آر ڈی، اور تمام شرکا، خصوصی طور پہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن طلبہ اور طالبات، ان سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ فورم صرف ایک نام نہیں ہے. ایم ایف ایم نے جب کام شروع کیا تو ہمارے پاس بہت سے چیلنجز تھے، اور میڈیا میں دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ کہ جو بالکل لبرل ہے یا جزوی لبرل ہے، اور یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ صرف جو لبرلزم ہے وہ ہمارے ڈراموں اور ٹی وی چینل کی حد تک کے یا رینٹنگ کی حد تک کے محدود ہے. میں خود ایک اس وقت نجی یونیورسٹی ہے اس کے فاؤنڈنگ جو ٹیم ہے اس کے اندر خود شامل بھی ہوں، اور ہم یونیورسٹی انشاءاللہ چینی ماہ میں اس کو ریفارم کر رہے ہیں. پہلے سے تھی اس میں میری اساتذہ سے بہت ڈیٹیل میں آج کل گفتگو ہو رہی ہے. تو وائس چانسلر سے لے کے ایک لیکچرار تک کے جو میری گفتگو ہوتی ہے تو اس سے مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اساتذہ کا طبقہ جو ہے وہ اس وقت انسٹنٹ ویلیوز کے اوپر جو ہے بہت فوکس ہے. تو دوسری طرف اگر میں کراچی یونیورسٹی کی صرف بات کروں، کراچی کی سب سے بڑی جامعہ ہے، تو اس میں نقاب اور حجاب، عبایا، سر سے دوپٹہ لینا، نوجوانوں کا داڑھی رکھنا، نوجوانوں کی نظریں نیچے رکھنا، یہ 80% نوجوان ہیں اس وقت جو اس طرف جو ہے جن کا جو ہے ویسٹرن کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف 20% لوگ ہیں
جو شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں ہماری میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یا مختلف جو ان کے حربے اس کے ذریعے وار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی فورم سے مختلف سلوگنس لے کے آ جاتے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ پورا پاکستان لبرلزم کی طرف چلا گیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارے بہت ہی اہم افراد موجود ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے صرف آپ لوگ لیے آئے ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ اس پروگرام کو آخر تک کے آپ لوگ جاری ساری رکھیے گا، اور آپ لوگوں کی کو میں یہاں سے بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کلاس سے چھوڑ کے اور وقت نکال کے آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ ایک ایسا کلچر موجود ہے جو قائد اعظم کا خواب تھا، وہی آپ لوگ تعبیر کریں گے۔ شکریہ۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس بہت ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو شاید ان کو موقع نہیں ملتا کرنے کا، اور جب ہم میڈیا کی جیسے گھروں میں بات کی، ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میڈیا، میں خود 27-28 سال سے میڈیا سے وابستہ ہوں، ابھی بھی ہوں، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ویب میڈیا ہو، تینوں سے منسلک رہا ہوں، اور میرے ساتھ میرے استاد احمد حسن صاحب موجود ہیں، یہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں۔ میڈیا میں عموماً سنجیدہ ٹاپکس پہ بات نہیں ہو رہی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی تطہیر نہیں ہو رہی، معاشرہ ہمارا بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، جبکہ میڈیا معاشرے کو نکھار کی طرف لے کر آ سکتا ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کے بعد ہم نے ایم ایف ایل پروڈکشن کی بنیاد رکھی، ہم نے، اور ہم نے ایم ایف ایل فورم کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد ہم اس کو لے کے آگے چلے۔ کہ صاحب ہمارا موضوع ہے مشرقی روایات اور ہماری نوجوان نسل۔ آپ جس وقت کو گزار چکے ہیں آپ کے دور میں، جبکہ آپ مانتے نہیں ہیں اس کو، خیر آپ کے دور میں دیکھیں میں آپ کو مسکراہٹ سے مدد کرتا ہے، یہ جو اس وقت جو تھے نوجوان، جو ان کی اقدار اور روایات سے جو ان کا تعلق تھا، آج باقی ہے کہ نہیں؟ میں یہ اکثر کوشش کرتے ہیں یہ پورا ثابت کرنے کی۔ اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی عمر کیا، میں نے کہا تھا 65 ایئرس، تو ظاہر ہے کہ میں بڑھاپا اور جوانی کا تعلق جسم سے تو ہے لیکن ذہن سے، ذہنی طور پر اور دلی طور پر نوجوانی۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارا معاشرہ بہت خرابیوں کی طرف جا رہے ہیں، بہت خرابیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور تمام روایات کو بھلا دیا گیا ہے، تمام افزار کو فراموش کر دیا گیا ہے، لیکن میں باہر ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو نوجوان ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں۔ ہماری جو مشترکہ روایات ہیں جن میں خیر خواہی ہے، ایثار ہے، احسان ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، عیادت کرنا ہے، تحائف کا تبادلہ ہے، بزرگوں کا احترام ہے، ان تمام معاملات کو اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہم سے آگے ہیں۔ ہمارے دور میں اتنا سب کچھ روایات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آج جو جیسے میں نے کہا خیر خواہی، ایثار اور احسان کا، تو پہلے زمانے میں شاید میں نے وہ مناظر نہیں دیکھے جو آج دیکھ رہا ہوں۔ آج خیر خواہی کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے اگر آپ صرف ایک سیکٹر کو دیکھ لیں، ہمارا جو شہر ہے کراچی شہر، اس میں اگر آپ غور کریں تو میڈیکل سیکٹر کا قریب 70% بوجھ جو ہے وہ خیراتی اداروں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ جو خیراتی ادارے ہیں جہاں پر ایسے کنسلٹنٹ، نامور کنسلٹنٹ جن کی بڑے بڑے ہاسپٹلز میں فیس 5,000 اور 6,000 ہے، وہی کنسلٹنٹ جو ہیں وہاں 200 اور 250 روپے میں غریب مریضوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا علاج کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کنسلٹنٹ اتنے نوجوان تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ خیراتی ادارے، یہ چیریٹیبل، یہ ویلفیئر کے ادارے چلا کون رہا ہے؟ میں نے غور کیا ہے، سروے کیا ہے، یہ زیادہ تر ہمارے نوجوان چلا رہے ہیں۔
ये आप देखें कि इतने शानदार तरीके से चला रहे हैं कि वहाँ पर करीब करीब शहर की 70% आबादी जो है उनसे रुजू कर रही है, और अगर खुदा न खास्ता ये इदारे ना हो तो हमारे गरीब लोगों में, गरीब क्या बल्कि मुतवस्सित लोगों में भी इतनी सकत नहीं है कि वो बड़े हॉस्पिटल्स का खर्चा बता सकें। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, अच्छा जहाँ तक एक दूसरे के साथ ताउन का सवाल है, तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि मेरे एक दिल साहब को दिल का दौरा पड़ा। उसने अपने व्हाट्सएप पर ये मैसेज किया, आप यकीन कीजिए कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर उसके घर पे अच्छे खासे 10-15 दोस्त इकट्ठे हो गए। उन्होंने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर उन दोस्तों ने ही अपने दोस्त के वालिद का इलाज की सारी तरबदौर की है, सौभाग की है। इसी तरह दुनिया अखबार में एक नौजवान फोटोग्राफर का मुस्तफा अभी देख रहे हैं, फाजिल नाम का, उसका बेचारा वो नौजवानी में ही कैंसर शनाख्त हुआ उसे, और उसके हाँ रिश्तेदार वगैरह नहीं थे, और थे तो वो इस काबिल नहीं थे कि वो कोई इलाज करा सकते, कुछ करा सकते। आप यकीन कीजिए कि उसके दोस्तों ने दिन रात एक कर दिया उसके इलाज के लिए, पैसे भी जमा किए। एक हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ वो करते रहे। और आप यकीन कीजिए कि मैंने अपनी जवानी में ये मनाजिर नहीं देखे, और मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ इतना अपना कीमती वक्त सर्व किया। इसी तरह जहाँ तक बुजुर्गों के एहतराम की रिवायत है, हमारी जो कदर है, उसका तो मैं ज़ाहिर खुद गवाह हूँ कि मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ आजकल, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो ऐसा शायद ही कभी कभार हो कि मैं खड़े होकर सफ़र करूँ। मैं जैसे ही बस में दाखिल होता हूँ, कोई ना कोई नौजवान अपनी नशिस्त खाली कर देता है और मेरे मना करने के बावजूद उसको इसरार करता है और मुझे बैठने पर मजबूर करता है, और हालांकि उसका सफ़र तमाम नहीं हुआ होता, सफ़र उसका बाकी होता है, उसके बावजूद वो खड़ा रहता है। और आपको पता है कि खड़े होकर सफ़र करना आजकल कराची की जो सड़कों की हालत है, उसमें बैठ कर सफ़र करना मुश्किल है, खड़े होकर सफ़र करना कितना मुश्किल है, लेकिन ये होता है। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल जिस पर ये इल्ज़ाम है कि वो बहुत बेबहरा हो रही है या अहकाम से और हमारी रिवायात से दूर चली गई, वो गलत है। हमारी नौजवान नस्ल, जैसा कि अभी फरूक भाई ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी में वो ये देखते हैं कि, और दीगर जामियात में भी देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चियाँ जो हैं वो अबाया ये इनका मुशाहिदा बिल्कुल सही है। और मैं अपना मुशाहिदा बयान करता हूँ। मुझे 44 साल से मैं सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, और इन 44 साल में रोज़ाना की मेरी ड्यूटी रही है कि मैं तस्वीरें सेलेक्ट करूँ, खबरें सेलेक्ट करूँ, और मैं यकीन से कह रहा हूँ, बिल्कुल 100% ये देखिए, जो अबाया है, स्कार्फ है, आम हालात में तो बहुत आसान है पहनना, लेकिन जब कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, किसी का बच्चा उससे छीन लिया गया हो, उसकी गोद उजाड़ ली गई हो, उसका एक ही नौजवान बेटा हो, उससे छीन लिया गया हो, उस वक्त जब वो माँ के दिल पे गुजरती है, जब वो बैन करती है, तो क्या उसको होश रहता है स्कार्फ का या अबाया? आप यकीन कीजिए, गजा और फलस्तीन की मैं 44 साल से तस्वीरें देख रहा हूँ, एक तस्वीर मैंने ऐसी नहीं देखी कि किसी खातून के सर से अब स्कार्फ उतरा। हर तस्वीर में, हालांकि वो रो रही होती है, वो चिल्ला रही होती है अपने बच्चे के मौत पर, अपने नौजवान बेटे की रहलत पर, अपने भाई के छिन जाने पर, लेकिन उनकी कल्चर है, उनकी ये रिवायत है, उनकी ये कदर है कि स्कार्फ नहीं धरता। तो ये एक, अगरचे आप ये कह सकते हैं कि ये इस्लामी रिवायत है, लेकिन अब तो ये एक इस्लाम वैल्यू है हर जगह। तो ये मैं इनका कहता हूँ। इसी तरह अभी जैसे मुस्तफा ने कहा कि
टीवी चैनल्स ने एक अलग तासुर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है ये बात। टीवी चैनल्स ने एक अपनी दुनिया बनाई हुई है, वहाँ पता नहीं क्या कुछ कूट पटांग दिखाया जा रहा है, वो कुछ दिखाया जा रहा है मसाले लगा के, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि हमारी नौजवान नस्ल के ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपने वक्त को बहुत अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह ये बात कही जाती है कि जी नौजवान नस्ल में मुताले का शौक खत्म हो गया है। मैं समझता हूँ ये भी गलत है, मुताले का शौक खत्म नहीं हुआ है, अलबत्ता मीडियम चेंज हो गया। पहले किताब होती थी, अब इंटरनेट होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल से बहुत से गलत काम भी लिए जाते हैं, लेकिन बहुत, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया था, तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने इस मोबाइल को ही खैर का जरिया और शर से दूर रहने का जरिया बना दिया है। और अब हम ये समझते हैं कि हमारे बाद अंधेरा नहीं ज़्यादा है। बहुत देर हमारे पास अंधेरा नहीं हो ज़्यादा है। मैं अहमद अली सिद्दीकी साहब के पास जाने से पहले मिस्टर अली की तरफ आया हूँ ताकि ये रहे कि हम पार्टी को भी बुलाने का, ऐसा ना हो कि यहाँ पार्टी का है मसला हो जाए। इफ्तार रिवायात, हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या इफ्तार और रिवायात सिर्फ पर्दा होता यही है या इसके अलावा भी कुछ इससे आगे की भी कोई बात है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने स्टूडेंट में बुलाया, मुझे मौका दिया कि स्टूडेंट्स के सामने कुछ बात कर सकूं। अच्छा, एक तो हम इस कंक्लूजन से निकल गए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो मशरिक़ इक़बाल है, असल में अभी बात कर भी थी सर ने कि हम इस्लामिक वैल्यूज़ की ही बात कर रहे हैं। इवन दो कि मशरिक़ में बहुत सारे और भी ममालिक आते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है वो अपने माशरे के हवाले से। अब मैं बस एक छोटी सी बात अगर आपसे पूछूँ, मुझसे सीनियर जो ख़वातीन थी, जब वो लोग यूनिवर्सिटी में आए तो यहाँ गाउन का और स्कार्फ का रुझान कम था, परसेंटेज कम था। जब हम आए तो सूरत हाल पहले के मुकाबले में बेहतर थी। और अभी अगर ये डिबेट पे खड़े होकर हम अगर कोई परसेंटेज फाइंड आउट करें तो मेरा ख्याल है मोर देन 95% लड़कियाँ जो हैं वो सर को कवर करती हैं और गाउन लेती हैं। मैं ठीक बोल रही हूँ? यहाँ हॉल से भी अगर आप देखिए कोई परसेंटेज तो 99 बनता है, मैं यहाँ से हूँ। लेकिन मेरा फिर अगला सवाल ये है और उसका जवाब आप दीजिएगा कि वो जो बेसिक वैल्यू है हमारे दीन की, जो किसी भी सोसाइटी को उसकी बुनियाद के ऊपर कायम रखने में बहुत मदद देती है, फ़र्द के अंदर डेवलप की जाती है और फिर जाहिर सी बात है फ़र्द से ही माशरा बनता है, तो माशरे में रिफ्लेक्ट करती है, जिसको हम हया कहते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि हया का परसेंटेज भी वैसे ही बढ़ा है? जितना हमारा अटायर का परसेंटेज चेंज हुआ, क्या हया का परसेंटेज भी वैसे ही चेंज हुआ? जवाब आपके सामने। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना रेसिपी में मिस हो रहा है, कहीं पे हमें समझने की जरूरत है कि बिल्कुल अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया, कुरान की आयत है खुली आप अपने आप को कवर करनी है, जो मॉडर्न ड्रेस है उसको अपनाएं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है ना। तो मुझे फील ये होता है कि जो ओवरऑल पैकेज है ना, जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है उसकी बहुत कमी है। जैसे मैं बहुत एहतमाद के साथ इस फोरम पे बात कर रही हूँ कि हमने ये समझ लिया शायद कि यही सब कुछ है, लेकिन इसके बाद हमने जो अभी आपके सामने शुरू में बात रखी है किसी ने कि वो जो आंखों की हिफाजत के हवाले से उसके ऊपर बात नहीं की जाती, बावजूद इसके कि हमारा उड़िया बहुत अच्छा होता है। हमने बिल्कुल इसकी तरफ जोर नहीं दिया कि हम बैकबाइटिंग को कंट्रोल करें, ग़ीबत को कंट्रोल करें, हमें इसमें शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, हमें नहीं अंदाज़ा होता इसके बावजूद कि हमारा उड़िया बहुत अच्छा होता है, हम लगते हैं शक्ल से अपने उड़िए से दीनी। हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता। जैसे मैं खुद काम करती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने पासवर्ड ना लगाऊँ अपने मोबाइल में और मैं चली जाऊँ अपने कमरे से निकल के किसी काम के लिए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान की वो जो आयत है कि परमिशन लेने की कि आप किसी के घर में दाखिल हो गए तो दरवाजे खटखटा के जाया करें, हमने इसको बस वहीं तक महदूद रखा है। पर्सनल लाइफ में एक दूसरे के साथ काम करते हुए इस तरह से प्रोफेशनल और ये जो आपका भी दौर है तालिब का, इसमें हमें इसे कैसे लेके चलना है, हमें ये चीज़ें नहीं आती। तो वो जो इनकम्प्लीट पैकेज हमने अपनाया है ना, और किसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गए हैं तो हम सबकी जन्नत की बुकिंग हो चुकी है, उसमें सोसाइटी के ऊपर बड़ा असर है। देखिए मैं ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप 3 ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी लेते हो, तीनों में 3 कलर डालें,
एक में ग्रीन डालें, एक में ब्लू डालें, एक में रेड डालें, थोड़ी देर के बाद क्या होगा जब हम इसको शेक कर देते हैं, आप मुझे बताएं कौन सा ग्लास कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगा? जी कौन सा ग्लास कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगा अगर आप मुझे बताएं? जिसमें रेड डाला तो उसमें क्या होगा? उसमें रेड ही रिफ्लेक्ट करेगा, जिसमें ग्रीन डाला था उसमें क्या होगा? ग्रीन ही। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैम आपकी कौन सी ऐसी बात करिए, तो रॉकेट साइंस नहीं, छोटा सा बच्चा भी बता दे। सोसाइटीज की जो साइंस है उसमें होता ये है कि जिस माशरे में जिसके मानने वाले, जिस मजहब के पैरोकार ज्यादा होते हैं, वहाँ वो दीन रिफ्लेक्ट करता है। आप विकिपीडिया के अकॉर्डिंग देखिए पाकिस्तान में मोर देन 97% मुसलमान रहते हैं, तो हम क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करते सोसाइटी में? हमारी वैल्यूज क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करती? कहीं कहीं पे ना वो इनकम्प्लीट जो सेंस है उसको लेके बैठे हुए हम लोग। मुझे ये लगता है कि हमें ये जो हमारा मतलब बुनियादी जो हमारी वैल्यू है हया, इसको जो है वो समझना चाहिए। अच्छा फिर वो जेंडर के हिसाब से भी हो गया। हम बच्चों को समझाते हैं, बेटों को कि बेटा मना किया है ना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप इस तरह से पहली निगाह तो चले गलती से हो गई, लेकिन दूसरी निगाह नहीं उठानी चाहिए ना। हमारा बेटा जवाब देता अम्मा पहली छूटेगी तो मैं दूसरी उठाऊंगा, मैं पहली में घर पर छोड़ के आऊंगा उसमें। तो कहने का मकसद ये है कि हमने यूँ कर दिया कि शायद हया जो है वो सिर्फ लड़कियों को मेंटेन करनी चाहिए। क्यों हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल नहीं है हमारे सामने, सहाबा कराम की नहीं है, नबियों की नहीं है। सोसाइटी मर्द और औरत दोनों से बनती है, दोनों को ये बुनियादी जो जुज़ है मोमिन की पर्सनालिटी का जो बेसिक वैल्यू है उसको मेंटेन करना चाहिए। अभी इंशाल्लाह सर के पास आएगा माइक, तो आपको हलाल और हराम के हवाले से भी बताएंगे क्यों हमें शर्म नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह को ना बड़ा गज़ब आता है, गैज़ आता है। और किस पे आता है? एक ऐसे शख्स के ऊपर जो कि बेजार है, उसने अपने आप को बड़ा दीनी बना के रखा है और वो अल्लाह के आगे इस तरह से दुआ मांग रहे हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह फिर क्यों नाराज होता है? अल्लाह तो दुआ कबूल करता है। अल्लाह को नाराजगी इसलिए होती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि ये शख्स इसका ख्याल नहीं करता है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसको उसमें शर्म नहीं आती, इसको उसमें हया नहीं आती, और ये किस तरह से मेरे से मांग रहे हैं। पहली मेरी जो डायरेक्शन है, पहली जो मेरी हिदायत है उसके ऊपर तो अमल करें ना। असल में इसको समझने की बात है बेटा, ये जो बेसिक वैल्यू है ना, जिसे हम कहते हैं कि हया, कोई और लफ्ज़ इसमें बोलती है कि मुझे यही चाहिए, मुझे नहीं लगता कि दूसरी ज़बान में जब ट्रांसलेशन करते हैं वो मुकम्मल सेंस देता है, वो उस तरह से हम अदा करते हैं। जी बिल्कुल। जब ये हया, शर्म या पर्दे की बात करते तो हमारा ज़हन हमेशा ख़वातीन की तरफ जाता है। जी बिल्कुल। मतलब हमने ऐसा माशरा डेवलप कर दिया है या हमारी ऐसी बचपन से तरबियत हुई है कि हम जब भी शर्म और हया की बात करेंगे, ख़वातीन की बात करेंगे, मर्द या हमारे बच्चों की होती है, तुम्हारी भी कोई बॉडी है। जी बहुत बड़ी कमी है ना। अच्छा देखिए, ये कौन है कमी, कौन कर रहा है? कमी तो सोसाइटी के डिफरेंट जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं सबने मिलकर की है। बात शुरू होती है माँ की गोद से, वहाँ से कमी आई, फिर बात होती है वो उस्ताद के पास आता है। लेकिन जब किसी पर्सनालिटी का मसला आता है ना, तो हम उसके दो डेवलपर को ही गालियाँ देते हैं। वैसे पहली बात आती है कि किन माँ बाप की औलाद है, फिर कहा जाता है कि किन जालिमों ने पढ़ा है, हम ही दोनों को बुरा भला कहा जाता है। तो ये वहाँ से निकलती है ना चीज़ें। लेकिन एक दफ़ा जब फर्द बाशऊर हो गया, एक दफ़ा जब वो उस एज में दाखिल हो गया जहाँ उसकी जिम्मेदारी बन गई है कि जो मिस हो गया है, जो गैप आ गया है, उसको खुद से कवर करे, अब वो रिस्पॉन्सिबल है ना। अब सारी जिंदगी ये थोड़ी कहेंगे कि मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया नहीं था, अब मैं क्या करूँ। एक दफ़ा आपने कुरान को मुकम्मल किया, पढ़ा, तो अब आप पे लाज़िम हो गया है ना कि अब आपको हमारे यहाँ दूसरा जो तबका है वो उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है। लेकिन ये बहरहाल तय है कि हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ों में फाइट करनी पड़ती है। हमें एहसास होता है कि अगर हमारे साथ काम करने वाले साहब की, इनके वालिदैन ने, इनके टीचर्स ने अच्छी तरबियत की होती, इनमें हया को मेंटेन किया गया होता, तो शायद हमारे लिए और ज़्यादा सहूलत हो जाती, आसान हो जाते मामले। ऐसा है बिल्कुल। इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है ना, उसकी वजह से मसाइल ज़्यादा हैं। हया को हमने सिर्फ अटायर तक महदूद कर दिया है। मैं फिर ये कह रही हूँ, इसकी बेइंतहा अहमियत है कुरान की खुली खुली आयात में इस हवाले से, लेकिन पूरा पैकेज लेने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है साहब कराम से कि डू यू नो व्हाट इज हया? आपको पता है जब नहीं आता था जवाब और आता था तब भी साहब कराम का पैटर्न तरीका क्या होता था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो जवाब क्या आते थे कि अल्लाह से हया का मतलब ये है आप अपनी जो थॉट्स है ना उसकी भी निगरानी करें, आप अपने पेट की निगरानी करें। और इन दोनों अल्फाज का क्या मतलब है? देखो अभी एक्शन नहीं हुआ है, उससे कहीं पहले जो ख्यालात आ रहे हैं ना उसी को कंट्रोल करने की बात हो रही है। हमें शर्म आनी चाहिए किसी के खिलाफ साजिश प्लान करके।
میں اور تو بڑے گنہگار ہوں گے, اچانک کوئی غلطی ہو جائے وہ اور بات ہے, لیکن ہم وہ انڈیا کے ڈراموں کی سوپ سیریز کی طرح سازشی خواتین نہیں تھی. ہمارے یہاں یہ سب سلسلے نہیں تھے, لیکن اب ایسا ہونے لگا ہے نا. اچھا میڈیا کو جو مصطفیٰ صاحب نے مجھ سے کل بھی یہ بات کی تھی, میں نے کہا دیکھیے آپ سائنٹیفک جو بھی ڈویژن ہوگی ہمارے برین کی اس کو تو آپ کو بہتر سمجھیں گے پڑھیں گے, لیکن میں سائیکالوجی کے پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 حصے ہیں ہمارے دماغ کے, ایک ریئیکٹیو باکس کہلاتا ہے, ایک تجزیاتی باکس کہلاتا ہے. اور طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ریئیکٹیو باکس میں بہت زیادہ ڈیٹا بھر دیا جائے نا تو انالیٹیکل اپنا کام نہیں کر پاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں, میرے پاس 1 منٹ ہے تو مثال اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کے ہی یونیورسٹی میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اس نے کاربن ڈائی آکسائڈ کھایا اور پھر وہ بیمار ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے, اس نے جو 1 ہفتہ شدید پین میں گزارا یہ چیز اس کے دماغ پہ رہ گئی ہے. 1 سال گزر چکا ہے, دوبارہ اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے والی ٹیبل پہ اس کا دوست ہے وہ 1 بائٹ سموسے منگوا کے اور وہ لے رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ بچہ کھائے سامنے والے نے اسے کہا نہیں کھانا تمہیں نہیں پتا, اس سے بیمار ہو جاتے ہیں, اور اس کو ایک دم سے وامٹنگ فیل ہوتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے اپنے آپ کو مینٹین کر کے تو پہلا والا کہتا ہے کہ یار یہ تو میں نے مان لیا کہ تمہارے ساتھ ہوا تھا, ایسا فوڈ پوائزن ہوا تھا, بڑی تکلیف ہوئی تھی, لیکن تم اس وقت یہ تو سوچو کہ یہ سموسہ تم تو نہیں کھا رہے تھے, یہ تو میں کھا رہا ہوں نا. اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ کوئی ایشو ہے. وہ ایشو کیا ہے؟ وہ ایشو یہ ہے کہ نیگیٹو ڈیٹا اتنا بھر دو دماغ میں کہ تجزیاتی ذہن کے کام کرے ہی نہیں کہ سموسہ جا کھائے. اب اس کو ریلیٹ کیجیے ذرا اس سے, تو میڈیا کی بات آ رہی تھی. میڈیا نے تو بیٹا ہمیں ٹریڈ کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا نا. کبھی وہ سنو چندہ ہوتی ہے, کبھی وہ ہانیہ عامر ہوتی ہے, کبھی وہ لکس کے ایوارڈ ہوتے ہیں, کبھی وہ کچھ ہوتا ہے. وہاں تو اللہ معاف کرے سر لوگ بیٹھے ہیں, کیا بات کروں, ہر بھابھی پہ نیبر کی نظر ہے, ہر نیبر پہ بھابھی کی نظر ہے. ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, پیچھے بھی ویلیوز مینٹین کیے ہیں لوگوں نے, ابھی بھی آج بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ڈیٹا ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے, ختم ہو چکی ہیں آپ کی ویلیوز, تباہ ہو چکے ہیں آپ لوگ, اور ہم نے تسلیم بھی کر لیا. اس لیے کہ ریئیکٹیو ڈیٹا کا باکس کا کردار یہ ہے کہ جب اس میں بہت نیگیٹو ڈیٹا بھر دیا جائے نا تجزیاتی ذہن کام نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ہم ایک باحیہ معاشرے کے باحیہ لوگ ہیں. ویلیوز کو مینٹین کرنا ہے, متاثر ہو رہی ہیں, اس پہ کام کرنا ہے. کہیں نہ کہیں کسی سپیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں ہم لوگ. الحمدللہ مسلمان ہیں, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, لیکن اس سے ایک چیز جو جس نے مسئلہ کیا ہے تھوڑا سا کام میں, جس نے مسئلہ ڈالا ہے پرسنالٹی کو بنانے میں, وہ یہ ہے کہ اسلامی اصطلاحیں بولنا آ گئی, ہمیں کام نہیں کیا کام, لیکن بولنا آتی ہے. مثال کے طور سے صبر کا لفظ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب صابر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہمیں انتظار کرنے کی تمیز نہیں. صبر از دا سپرلیٹو ڈگری آف ویٹنگ. یہ بیسک ہیومن کوالٹی ہے انتظار کرنا, اور جب فرد اپنے اوپر کام کرتا ہے, قرآن و سنت سے مدد لیتا ہے, تو یہ صبر جیسی اسلامی خوبی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ کیونکہ ہم بچپن سے درس سنتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, تو ہمیں انتظار کرنے کا سلیقہ نہ ہو, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم باریان ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت صابر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ نا انالیسس کریں, تجزیہ کریں, اپنی پرسنالٹی کے میرٹ اور ڈی میرٹ کو فائنڈ کریں, اور پھر کام شروع کریں. اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ مجھے آپ سے بہت شکایتیں, میں سر کے بالکل ساتھ ہوں, مجھے آپ سے بہت امیدیں, آپ کو بہت اچھے بچے ہیں اور بہت اچھا کریں گے آپ, لیکن کام کرنا پڑتا ہے. بہتر یہ دنیا کام کی دنیا ہے, یہاں وہ نظر آتا ہے جو کام کرتا ہے. آپ کی اب چونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, سوال آپ سے بات کرتے ہیں وہ آگے میرے ذہن میں تو آپ سے بات کروں, کیونکہ ہم نے بھی نظام تعلیم کی بات کی, ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے مختلف نظام رائج ہیں, نظام تعلیم کے مختلف نظام رائج ہیں, وہ بھی ہماری روایات, ہمارے اقدار کو کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچا رہے ہیں. جبکہ ہم کراچی کی بات کرتے ہیں جو بہت چیز بہتر ہے, اس سے انکار نہیں. یہ بہرحال کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے نوجوانوں کا, جن کو آپ تربیت کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھتی ہیں, کیا وہ نوجوان ہماری روایات سے جو ماضی کی تھی اس سے منسلک ہے یا اس سے دور ہو گئی ہے؟ السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک ہے سیمینار کا وہ ہے مشرقی روایات اور آج کا نوجوان. تو 2 ایلیمنٹ ہیں اس کے اندر, اور پہلا ایلیمنٹ میں بات کروں گی کہ آج کا نوجوان, آج کے نوجوان میں بہت پوٹینشیل ہے. آج کے نوجوان کو بہت زیادہ ایکسپلور کر رہا ہے چیزوں کو,
اور ایکسپوجر بھی اس کا بہت زیادہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ نوجوان کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے, ایبلٹیز نہیں ہے یا اسکلز نہیں ہے, وہ سب کچھ موجود ہے. لیکن دوسری طرف ہم آتے ہیں تو مشرقی روایات یا اسلامی روایات کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمی ہے, ٹرانسمیشن آف ویلیوز. اور اس کے اندر جیسے آپ نے بات کی کہ ایجوکیشن سسٹم تو سب پلان کر کے دے رہا ہے, اور ایجوکیشن ہم دے بھی رہے ہیں, کنٹینٹ دے رہے ہیں, کانٹینٹ ہم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹیچنگ مٹیریل بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایجوکیشن, ٹریننگ اینڈ اسکلز. تو ایجوکیشن تو ہم دے رہے ہیں, ڈگریاں بھی دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اسکلز بھی ہیں کہیں, لیکن تربیت کی بہت کمی ہے. اور تربیت کی کمی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا ٹیچر بھی اس طرح سے ٹریننگ نہیں کر رہا ہے یا تربیت نہیں کر رہا ہے یا ٹرانسمیشن آف ویلیوز نہیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ سر مجھے صرف ٹرانسمیشن آف نالج کرنی ہے, اور وہ کر کے اب چلا جاتا ہے, لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی, کیونکہ آج کے تعلیمی ادارے فزیکل ایجوکیشن اور ایک ٹیچر کی حیثیت اس لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہم مطلب نیٹ پہ بہت نالج مل جاتی ہے, لیکن تربیت کے حوالے سے ہمارے تعلیمی ادارے آباد ہیں آج بھی, اور ایک ٹیچر بھی موجود ہے کلاس روم میں اور تعلیمی اداروں میں. تو تربیت نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری ویلیوز بھی ٹرانسمٹ نہیں ہو رہی. تو اور دوسرے پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. پیرنٹس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کو نیٹ دے دیا ہے اور بہت سارے جو ڈیوائسز ہیں وہ پرووائڈ کر دی ہیں, اور ٹھیک ہے ان کو لگژریز دے دی, بس یہی ہمارا کام ہے, مگر ان کی تربیت کرنا. آپ دیکھیں ہم لوگوں کے وقت میں جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک تو ہوتا تھا, اس کے تھرو بھی بہت زیادہ تربیت ہوتی تھی, اور پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم ہوتا تھا اور ٹیچرس کے پاس بھی ٹائم ہوتا تھا, اور وہ ہماری تربیت کرتے تھے اور ویلیوز کو ٹرانسمٹ کرتے تھے کسی نہ کسی وے میں. تو آج اس چیز کی کمی ہے, اور ڈائریکشن اصل میں نئی نسل کی غلطی نہیں ہے, ان کو ڈائریکشن صحیح نہیں مل رہی. جیسے بھی بات ہوئی کہ میڈیا کے تھرو بھی نہیں مل رہی ہے. ابھی انڈین ڈراموں کا ریفلیکشن ہمارے ڈراموں پر بھی آ گیا ہے, میڈیا پر آ گیا, سوشل میڈیا پر آ گیا. تو بچے وہاں پر زیادہ ٹائم سرو کرتے بجائے اس کے اپنے بڑوں بزرگوں کے ساتھ بیٹھے گئے. یعنی کہ اگر گھر کے اندر 5 لوگ موجود ہیں تو 5 کے پاس موبائل ہوگا, پانچوں جو ہیں ساتھ بھی بیٹھے ہوں تو موبائل کے اندر ہوگی. اب جب کلاس میں ہی ہم لوگ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں ٹیچرس, تو اس وقت بھی بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ موبائل کے اندر ہی دیکھیں. تو ٹیچر کو موبائل بھی ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہوتا ریسٹورینٹ کے ساتھ. نہیں ٹیچر کو ہوتا ہے, ٹیچر ہم لوگ تو ہوتے ہیں, باتیں کا نہیں پتا ہم لوگ اپنی میں بلکہ اب جب کہ میرے پاس ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو میں اپنا موبائل کلاس میں لے جاتی ہوں, ورنہ پہلے ہم اپنا موبائل اپنے روم میں چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ کسی فون کو بھی. افطار کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک زمانہ مطلب میں نے پچھلے کسی گاؤں دیہات میں کسی نے بڑی اچھی اس میں وہ بنایا کہنے کے ڈرامہ بنایا, اور استاد اور شاگرد کے درمیان تعلق کو اس نے ڈیفائن کیا کہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے کا استاد ہے, وہ جب سائیکل پہ آ رہا ہے تو وہ جو بچے ہیں وہ دیکھ کے اس کی سائیکل لے کے آ رہے ہیں, ارے میم جا رہے ہیں, بچے لگوا کے لاتے ہیں, اور اس نے لکھا ہے 2024 استاد موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں استاد صاحب آگے بھاگو کام کہہ دیں گے. تو یہ جو تعلق استاد اور شاگرد کے درمیان کمی آئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, شاگرد یا استاد؟ اس کا ذمہ دار استاد ہے اور پیرنٹس ہیں. میں کہہ رہا کہ بچوں کی یا اسٹوڈینٹس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں کہ ٹرانسمیشن آف ویلیوز. اگر ہم ویلیوز ٹرانسمٹ کریں, جیسے آپ نے کہا بچہ بھاگ رہا ہے تو ہم نے اسے بتایا نہیں کہ ہم بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ بڑے کی رسپیکٹ کرنی, اس کے کام کو بھی سننا ہے, اور کام کو پہلے والے جو ہمارے شاگرد ہوتے تھے, اسٹوڈینٹس ہوتے تھے, اس وقت کی جو آپ نے پہلے والا جو سیناریو پیش کیا تو اس میں وہ اپنے ٹیچرس کی خدمت کر کے اور بلکہ سامنے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے بتائیں کوئی کام تو ہم کریں, اور ان کی رسپیکٹ آج جیسے ہم لوگ کے وقت ٹیچر اسٹوڈینٹس ایسے ہیں کہ آج بھی ان کا ٹیچر سامنے آئے تو رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن آج کے اسٹوڈینٹ کے اندر وہ چیز نہیں ہے کیونکہ ہم نے نہیں کی ہے, ٹیچرس نے ان کو اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے, یہ ویلیوز ہے مشرقی روایت اور اسلامی روایت, بڑوں کی یہ رسپیکٹ کرنی ہے, ان کی بات سننی ہے, ان کی خدمات دینی ہے, تو اس میں سب ثواب ہے.
یعنی کہ اگر وہ کچھ ان کی خدمت کریں گے اپنے اساتذہ کی تو اس میں ان کو ثواب ملے گا اپنے پیرنٹس کی. تو یہ مختلف احادیث ہیں وہ انہوں نے بتائے تو ہم تو بتا ہی نہیں رہے. تو مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ پیرنٹس اور استاد کا کردار ہے کہ ہم ان کو صحیح ڈائریکشن پرووائڈ کریں تو سوسائٹی کے اندر پازیٹیو چینج آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آج تو استاد بھی اپنے اسٹوڈنٹس ہے اسے یاد کر کے بات کرتا والا دوستوں کے آپ تالیاں مار کے بات کر رہا ہوتا ہے میرا سن دیکھا ہم بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے اور انوائرمنٹ تو فرینڈلی ہونا چاہیے لیکن ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے جو تربیت کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ احمد علی صدیقی صاحب. یہ میں کہنا بس یہ ہمارے ٹیم کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ٹینا ہے ہماری ایم پروڈکشن کی یہ سوشل میڈیا مینیجر ہیں اور اس وقت آپ سے فارم بھی بھروا رہی ہیں. آپ اپنے کانٹیکٹ میں ڈیٹیل لیجیے گا ان شاء اللہ ہمارا ٹیم آپ سے شیئر ہوگا. احمد صاحب آپ سنیے سب کو ہم اقدار روایات کی بات کر رہے ہیں بند ہو گیا اس کے ساتھ. یہ ہم عالمی سطح کی بات کرتے ہیں اس وقت دنیا کے بارے میں کہتے ہیں. دنیا گلوبل ولیج ہے عالمگیریت ہے اور میڈیا اس قدر اثرات ڈالا ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے ہم یورپ امریکہ کی چیزیں اور کی تہذیب اڈاپٹ کر رہے ہیں. کیا ہم اتنی زیادہ ان سے مغرور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب اپنے اوتار اپنی روایات سب کو بھلاتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ صاحب آپ کا اور گورم کا. علامہ اقبال کا ایک شعر جیسی حوالے سے یاد آیا کہ قیاس اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے خاص ہے ترکیب میں قومی رسول کے حاصل. تو علامہ اقبال نے اس وقت یہ میسج کیا کہ صحیح ہے کہ آپ ان سے سیکھیں لیکن جو آپ کا اپنا جو ویژن ہو جو آپ کو اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے ایز این آئیڈیل آپ کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ ایک حضور سسٹم کی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس اگر موٹو کو سامنے رکھتے ہیں اور اس ویژن کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم بھی بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ اپنے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے یہ بات. اور دوسری بات ہے کہ ہمیں اگر پوری سوسائٹی کو دیکھنا ہے تو یہ کراچی یونیورسٹی بھی اس کا حصہ ہے لیکن آپ کے ساتھ آئی پی ایل اور زیڈز بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. تو ہمیں اگر اکراس دا بورڈ دیکھیں گے تو ہمیں بہت سارے ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں اور یہ سامنے نظر آتا جا رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ نظریاتی طور پہ یا مادی ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ویسٹ سے زیادہ امپریس ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ چیز ہمارے یہاں ہمارے نوجوانوں میں بھی اور ہمارے بڑوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ ہم ویسٹ کی جو فلاسفی ہے جو ویسٹ کی جو ویلیو سسٹم ہے اس کو زیادہ پریفرنس دینے لگے ہیں. اور اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے اور جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یا جو میں پڑھاتا ہوں تو بات کرتا ہوں اور ایون اپنے جو پروفیشنل کولیگز ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اپنے لیے صحیح آئیڈیاز منتخب کیے ہیں. اگر میں اپنے میں پروفیشنلس کو پڑھاتا ہوں تو میں بہت سارے بینکرز ہیں پروفیشنل میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ بتائیں آپ یا اپنے بچوں کے لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنا ایک آئیڈیل لیڈر لکھو تو کوئی فٹ بالر کا نام لکھے گا, کوئی کرکٹر کا نام لکھے گا, کوئی اداکار کا نام لکھے گا, کوئی بل گیٹس کا نام لکھے گا, کوئی ایلن مسک کا نام لکھے گا, ضرور لکھیں گے. لیکن کتنے لوگوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں گے, کتنے لوگوں میں جو امام حسین کا نام لکھیں گے, امام حسن اور امام حسین کا نام لکھیں گے, کتنے لوگوں میں جو علی کا نام لکھیں گے, ابوبکر اور عمر کا نام لکھیں گے, خالد بن ولید, طارق بن زیاد کا نام لکھیں گے. یہ کم لوگ ہیں اور یہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی جب ہمیں اگر یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ ہمارے جو اصل لیڈر ہیں, جو ہمارے رول ماڈل ہیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے اصحاب ہیں, ان کے اہل بیت ہیں, تو پھر ہم اپنے آپ کو ان کے ویلیو سسٹم سے یا ان کے جو انہوں نے جو ہمیں گائیڈ کیا اس سے اٹیچ کریں. اچھا ایک اور بات جو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ مغربی یا مشرقی اقدار ہیں کیا, تو اس پہ بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ بات ضرور کروں کہ ہم کن چیزوں کی بات کرتے ہیں. ہم تو کہنا تو آسان ہے کہ مشرقی اقدار ہے, کرسچن ویلیوز ہے, اسلامک ویلیوز ہے, لیکن اگر میں اس میں کوئی میں اگر آپ کے سامنے 6-7 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم کس چیز کی بات کریں. ایک بہت اہم اقدار ہے, ایک بہت اہم اسلامک ویلیو ہے ہیوملٹی.
یعنی انسان کے اندر سکسیس کے باوجود عاجزی پیدا ہونا. اور ایک وہ مقولہ ہے اردو میں ابھی استعمال ہوتا ہے کہ جو درخت زیادہ پھلدار ہوگا وہ زیادہ جھکا. تو اگر آپ لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں, آپ سکسیسفل ہیں, تو سکسیس کی ایک نشانی جو ایک اچھے مسلمان میں ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا اور وہ ہیوملٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرے گا. اور آپ اسلام کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا جو مشرقی اقدار یا اسلامی اقدار جو ہمیں اپنے اندر اور ریفائن کرنی اور پالش کرنی ہے وہ ہے والدین کا ادب اور بزرگوں کا, بڑوں کا اور اساتذہ کا ادب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہمیں ملتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ ہو. یہ ہمیں ملتا ہے کہ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. یہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر وہ ایسی اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز سکھائی زندگی میں, وہ آپ کا استاد تھا, چاہے وہ ایک چیز کے لیے تھا, تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی اس کا اس چیز پہ رسپیکٹ کروں گا, اس کا وہ شکر گزار ہوں گا. تو یہ ایک ہماری دوسری تیسری جو اس ویلیو ہے وہ ہے احسان. احسان کا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی کام آپ کرو اس کو ایکسلنس پہ لے جا کے کرو, بہت اپنی پوری محنت لگاؤ اور اس کو بہترین طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے کریں. یہ ایک ایسٹرن ویلیو ہے جو ہم نے, اور یہ اس لیے نہیں کریں کہ کوئی دوسرا دیکھے گا, یہ اس لیے کہ ہمیں خود یہ چیز ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب مسلمان کوئی مومن کوئی کام کرتا ہے تو بہترین طریقے سے کرتا ہے, تو اس میں ایکسلنس پیدا کی جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. پھر چوتھی جو ویلیو ہے وہ ہے کہ کمیونٹی ورک یا امت کی خیر خواہی, لوگوں کی خیر خواہی, چاہے وہ پڑوسی ہو, چاہے وہ رشتہ دار ہو, چاہے وہ آپ کے شہر کا ہو یا وہ آپ کی. اور اسی لیے حضور کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی جو مسلمان جو ہے مسلمان امت وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر کسی جگہ بھی تکلیف ہو, کسی ایک عضو میں, یعنی اگر ہمیں فلسطین میں تکلیف ہوگی تو ہمیں یہاں تکلیف ہوگی, ہمیں اگر کسی لاہور میں کسی کو تکلیف ہوگی تو ہمیں یہاں تکلیف ہوگی. یعنی ہم ایک سنگل باڈی کی طرح, یونیفائڈ باڈی کی طرح, لیکن اس میں پھر درجے بھی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے, رشتہ دار پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے, رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے, اور پھر جہاں تک آپ کا سرکل آف انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس سب جگہ پہ آپ نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے. پانچویں جو کوالٹی کسی بھی آج کسی کو بھی سکسیزفل کرے گی انشاءاللہ وہ ہے صداقت, ٹروتھفلنس. ہم نے یہ کوالٹی کو بھی تھوڑا سا پیچھے کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور شارٹ کٹس جو ہے نا وہ سکسیس کا طریقہ ہے. یہ ٹیمپرری سکسیس کا طریقہ تو ہے, لیکن اس میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ بہت سارے غلط کام کر سکتا ہے, جس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, گناہ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک کام نہیں کر سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور آج کل ہم نے یہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کے اندر یہ ہوا ہے کہ ہم جھوٹی سچی خبریں فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, واٹس ایپ پہ جو آئی وہ آگے 100 لوگوں کو بڑھا دیا, اور ہم نے اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کر دی. تو یہ آپ کے اندر یہ ویلیو سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ نے خود بھی سچ بولنا ہے اور صرف سچ ہی کی بات پہ, حق بات پہ آگے قائم رہنا ہے. اور جیسے بھی میڈم نے کہا کہ صبر اور پیشنس یہ ایک اچھی ویلیو ہے. اور امانت داری, اگر آپ کو کوئی امانت دیتا ہے, کوئی آپ سے کوئی بات بھی امانت کے طور پہ کرتا ہے, کوئی مشورہ آپ سے امانت کے طور پہ لیتا ہے, تو یہ نہیں کرتا کہ پوری کلاس میں لے تو اس کا پورا جو ہے نا سیکرٹ آؤٹ کر دیا اور وہ سارے لوگ اس کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں. یا کسی رشتے داروں میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, 2 لوگ آپس میں بات کرتے, آپ نے اوور ہرٹ کر لیا, اب یہ بات بھی امانت ہے, یہ آپ کا رائٹ نہیں تھا, آپ نے سن لیا تو اس کو وہیں غائب کر دیں, نہ کہ وہ آپ نے جا کے BBC چینل کی طرح اس کو نشر کر دیا آگے. اور اسی طرح ایک آخری جس میں میں اپنی بات کو یہاں روکوں گا کہ ایک اور جو ایسٹرن ویلیو یا اسلامک ویلیو ہے وہ ہے علم حاصل کرنا, نالج حاصل کرنا. اور نالج کا مطلب یہ نہیں کہ کورس کی کتاب پڑھ لی خالی, اس میں تعلیم بھی ہے, اس میں تربیت بھی ہے. امام غزالی کا نام سنا ہوگا. امام غزالی کتنے بڑے اسلامک ایکسپرٹ ہیں. جب وہ اپنے کیریئر کے ٹاپ پہ تھے تو وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور کہا کہ میں صرف ظاہری علوم نہیں بلکہ سائنس جو ہارٹ کی علوم ہے, انسان اندر سے کیسے اچھا ہو. وہ رومی کا مولانا روم کا تذکرہ آتا ہے, وہ ایک لیول پہ تھے, شمس تبریز ملے اور وہ ایک دوسری طرف, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو, پھر وہ جو دوسرا جو ان کا رخ تھا وہ پہلے لوگ سے کہیں اوپر تھا, کیونکہ وہ علم بھی رکھتے تھے, اس کا عمل بھی رکھتے تھے, اور وہ
وہ اس اخلاص اور اس احسان کی طرف پہنچ گئے تھے اور وہ اسی کی طرف. تو علم حاصل کرنا, ہارڈ ورک, یہ ہماری ایسٹرن ویلیو ہے. بس آخری بات دیکھیں, ہمیں اپنے اوپر بھروسہ بھی ہونا چاہیے, اللہ اور تعالیٰ پہ ہمیں کتنا یقین ہونا چاہیے کہ سکسیس اور تبدیلی اور کامیابی ہم کسی انوائرمنٹ میں اسی چیلنج کو لے کے کر سکتے ہیں. یہ جو تھاٹ پروسیس ہے کہ پاکستان چھوڑو اور جا کے کفار کے ملک میں رہو, جہاں پہ نہ کھانے کو حلال ملے, نہ پینے کو حلال ملے, نہ اذان کی آواز سننے کو ملے, اور جہاں ہر طرح کا گناہ, شراب نوشی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں عام ہیں. لیکن ہمارا یہ ایک انفارچونیٹ تھاٹ پروسیس ہے, جبکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک عام حالات میں دارالکفر میں جا کے رہنا یہ ناجائز ہے. تو ہم میں سے جو لوگ ہجرت کر کے جا کے نا دوسرے ملکوں کی غلامی کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور ایک کینیڈین پروفیسر کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ ایک کینیڈین پروفیسر تھا جو کینیڈا میں کینیڈین بورن تھا. اس نے ایک پاکستانی جو ہجرت کر کے کینیڈا پہنچ گیا تھا, کوئی پروفیسر تھا, اس سے پوچھا کینیڈین نے پاکستانی نژاد سے کہ بھائی تم یہاں, پاکستانی نے پوچھا کینیڈین سے کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کی جگہ دی, اپنی شہریت دی, تو کیوں ایسا کیا؟ اینڈ کینیڈین پروفیسر واز ویری کرسپ. اس نے کہا وی وانٹ یو ٹو سرو اس, آپ کو ہم نے اپنی خدمت کے لیے اور غلامی کے لیے بلایا. اچھا, تو اس نے کہا یہ لیکن ہم تو اپنا مذہب ساتھ لے کے آئے, ہندوستان میں یہ وہ. انہوں نے کہا ہماری اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ آپ کی امیڈیٹ نسل میں سے 50% مسلمان نہیں رہیں گے, یعنی آپ کے اپنے بچوں میں سے 50% اسلام چھوڑ چکیں گے, اور اگلے والے نسل میں سے صرف 20% نام کے یا تھوڑے بہت مسلمان ہوں گے, تو ہمیں آپ کے اسلام سے بھی مسئلہ نہیں ہے. اور تیسری بات جو میں نے اس میں ایڈ کی کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ یہاں ہماری غلامی میں آ جائیں گے تو اپنا پورے ملک سے اپنا سارا سامان بیچ کے, گھر بیچ کے, مال و متا لے کے, سارے پیسے ٹرانسفر کر کے ہمارے پاؤں میں رکھے جاتے ہیں. تو دس از ماڈرن سلیوری. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. آپ کی اس بات سے یاد آیا مجھے کہ پچھلے دنوں میرے ایک دوست امریکہ سے آئے, کزن میرے, ان سے اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے کہ ہماری جو آج کی نسل ہے, جو اب نئی نسل وہاں پہ آ رہی ہے, ہم لوگ بہت پریشان ہیں. ان کو 30 سال ہو گئے وہاں پہ, اب پریشان ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ لامذہب کی طرف جا رہے ہیں, اور وہاں باقاعدہ مہم چل رہی ہے اس کی. تو یہ اس پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مدد کرنے کا یہاں مذہب کروائیں. یہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میں ایک سوال اور تھا, ہماری رسم و رواج, ہماری ویلیوز کا تعین کرتی ہے نا, شادی بیاہ ہے, دیگر ہماری جو رواج ہے, رسم و رواج ہوتی ہے, وہ بھی جیسے سوریا نے کہا کہ ہمارے انڈین کلچر کی ضرورت آ چکی ہے وقت, اور ہم بہت تیزی کی طرف اس کی طرف جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. اس کو روکا کیسے جائے؟ ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن کہتے ہیں میں کہتا ہوں حل کی بات کریں, تو کیسے روکا جائے؟ اچھا, میں جو فائنینس سے میرا تعلق ہے, میں اسلامک فائنینس میں کام کرتا ہوں, تو میں اگر اس کا فائنینشیل جواب کو شاید زیادہ سمجھ آئے, اور تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں فائنینس کے اندر ہم ایک کانسیپٹ پڑھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے بجٹ میں رہیں, جتنے آپ کی آمدنی ہے اتنی ایکسپینس کریں. اب ہمارے یہاں یہ ہوا ہے, ایک تو دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو لوگوں کو حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی ہے, بس پیسہ کماؤ. اچھا, ایک بات یاد رکھیں, حرام میں کبھی برکت نہیں ہے اور سکون نہیں. کثرت ضرور ہے, پیسہ زیادہ مل جائے گا رشوت سے, چوری سے, سود سے, دھوکہ دے کے, لیکن اس میں سکون نہیں ملے گا, اور وہ ہمیشہ ہانٹ کرے گا. کبھی وہ اولاد نافرمان ہو جائے گی, کبھی بیماریاں آئیں گی, کبھی سکون ختم ہو جائے گا, اور یہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے. فائنینس میں واپس اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو رسومات ہیں, دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اگر اپنے آئیڈیلس کو فالو کریں تو یہ رسومات ہم کو پتہ چلے گا کہ کون سی کام کی کون سی چیز ہے. دوسرا, ہم نے ہزاروں لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ جب وہ شادی بیاہ کی تکلیف ہوتی ہے تو اپنے آپ کو وہ اوور برڈن کر دیتے ہیں, قرضے لیتے ہیں بیٹی کی شادی کے لیے, بیٹے کی شادی کے لیے, اور ایسی فضول رسومات جس کا 10 کورس کا کھانا رکھ دیا, 500 لوگوں کو 1000 لوگوں کو انوائٹ کیا, 5 6 8 فنکشن رکھ دیے, لاکھوں روپے ڈریسنگ کے اوپر اور ڈرون مووی کے اوپر کیا کیا خرچ کر دیے, اور آخر میں فائنینشلی وہ ہمارے پاس بینکوں میں آتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. بھیک مانگنے سے مراد ہے یہ ہاتھ لے کے پیرنٹس پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی قرضہ دے دو, ہمیں کوئی پیسے دے دو کہ ہم نے یا تو حماقت کر لی ہے یا حماقت کرنے والے ہیں. تو فائنینشلی اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو اس کے دکھاوے کے لیے یہ جو آپ کام کریں گے نا, تو اس کے بعد 10 سال تک وہ پیرنٹس ہم نے
फाइनेंशियली रुस्वा होते हुए देखे हैं, जो अपने बच्चों की इन ख्वाहिशात की बिना पर या माशरे की ख्वाहिशात की बिना पे वो इंडियन कल्चर हो, वेस्टर्न कल्चर हो, कोई सा भी कल्चर हो, वो उसको फॉलो करके उन्होंने अपनी औकात से ज्यादा खर्च किया। तो ये शर्म भी मसला है, और दूसरी फाइनेंशियल जो एक आपने अपने लिए मुसीबत क्रिएट की है, क्रेडिट कार्ड बस्ट हो गए, पर्सनल लोन की लाइन ले ली, घर गिरवी रखवा दिया, गाड़ी गिरवी रखवा दी। शादी के बाद जब शादी में आप लोग या गरीबी में या मेहंदी में हमारी में जब लोग जा रहे होते हैं ना, आप उनसे पूछेगा आखिर में खाने में कोई ना कोई दुख निकाल के जाते हैं, मीठा अच्छा था लेकिन आइसक्रीम नहीं मिली मुझे। हमें भी नहीं मिली अभी। सर ये एक सवाल आपसे, मैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जा रहा हूँ, एक सवाल और तमाम कैसे लेना चाहता हूँ। हम रस्म रवाज की बात कर रहे हैं इस वक्त, मैं फिर नहीं कहूँगा कि आपके दौर में, मेरे दौर में जो होता था, हम रस्म रवाज में जब बात करते हैं, कुछ भी हो, एक हमारा खानदानी निज़ाम था। जब किसी घर में कोई तकरीब होती थी तो पूरा खानदान या मोहल्ला एक जगह होता था, वो पूरा खानदान उसको यानी कि उसमें मदद करता था, मोहल्ला करता था। आज हमने देखा है कि अगर किसी घर में जनाजा भी हो जाए तो उसके आसपास वाले भी बहुत करीब से नहीं आते। ये खत्म होती जा रही है वैल्यूज, क्या अभी है बात? आप क्या कहेंगे? जो आप रस्म रिवाज के हवाले से कह रहे थे, वैसे तो रस्म रिवाज के हवाले से आप ख़वातीन सवाल करते हैं, वो जवाब देते हैं। उनके मैंने भी नोट मैंने जो नोट किया है वो यही नोट किया है कि रस्म रिवाज मर्द तो बहुत हद तक तोड़ना चाहते हैं जो गलत रस्म रिवाज है, लेकिन ख़वातीन बड़े आ गए नहीं ये तो इतना तो होना है, वरना क्या कहेंगे। तो एक बात तो ये है कि लोग तो हम फिर भी कहते हैं, जैसे कि अभी सबने कहा कि आप कुछ भी कर लें, आप कितने विषय बनवा लें, लेकिन फिर भी वो मुफ्ती आगे जाते हैं ज़्यादा। ये तो अच्छा, ये हर चीज़ में सोच लेना चाहिए। आप लोगों को आज नसीहत कर रहा हूँ कि ये मत सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, लोगों के कहने की परवाह ना करें, ये सोचेंगे अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है। लोगों की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, लोग तो हर सूरत में कहेंगे, ये तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे हाँ नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। देखिए उसमें ऐसा हो रहा है कि यकीनन क्योंकि आप ऐसे जो लालन इकबाल ने कहा था ना कि एहसास मुरब्बत चल देते हैं आला। अब वो उस जमाने में तो खैर हमें समझ में नहीं आते थे, इतना ज्यादा ये शेर समझते है मौत है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत चल देते हैं आला। उस जमाने में जब हम यानी कम उम्र थे, उस जमाने में तो ये समझ में नहीं आता था कि इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन अब जब से मोबाइल आया है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। जैसा कि मोहतरमा ने फरमाया कि 4 बंदे एक कमरे में बैठे हैं और 4 अलग अलग अपने मोबाइल पर लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है, अभी मेरे मोहल्ले में ही एक डेथ हुई थी एक साहब की, उनकी सिर्फ एक ही बेटी है और वो दुबई में उठी है, तो और बेगम जो है वो बीमार है। तो बहुत कम उनके 1-2 रिश्तेदार हैं, 2-4, बाकी सारा कुछ मोहल्ले वालों ने किया और उनके जिस तंजीम से था उसने किया। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा हो गया हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पहले शायद इससे ज्यादा था कि पहले लोग ज्यादा एक दूसरे से ताउन करते थे, लेकिन अब भी ऐसा ही है। ठीक है। हाँ, जिस तरह ये हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा दिखावा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा दिखावा हो भी रहा है, लेकिन टीवी पे ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा दिखावे की एक लहर चल रही है तो एक दूसरी लहर भी चल रही है, शायद वो भी आपके इल्म में हो, और वो है बिल्कुल सादगी कि जो शादी का उसूल कायदे कवानीन सहाबाए किराम के जमाने में थे, हुजूर ने जो नाफिज किए थे, अब लोग उस पर भी अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसी शादियां भी देखी हैं कि जिसमें मेरे अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त की शादी हुई, उसने मुझे नहीं बुलाया, इसलिए वो बहुत कम लोगों को बुलाना चाहता था। इसमें कोई शिकवा नहीं करना चाहिए भाई, जितना वो जिसको बुलाना चाहे वो मेजबान, और जितना उसके वसाइल इजाजत देते हैं। तो ये बात भी है कि अगर कोई किसी को नहीं बुला रहा है तो उसको इसकी शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। और इसी हवाले से एक बात ये भी है
कि जब हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में अगर किसी लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी नहीं हो रही होती, वो लड़के वालों की गुलामी कर रहा होता है, वो मुआहदा कर रहा होता है। तो ये हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए और बार बार हमें फख्र का इजहार करना चाहिए कि हमारे यहाँ सब नहीं होता। हमारे यहाँ बराबर होते हैं, लड़की वाले भी बराबर होते हैं, लड़के वाले भी बराबर होते हैं। और हमारे खास तौर पर ईस्टर्न हमारे इस्लामी कल्चर में ये है कि शादी ब्याह में लड़की वाले का कोई पाई पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। अगर कुछ खर्च होगा तो सिर्फ लड़के वाले का होगा, वलीमा वगैरह होगा, लड़की वाला कुछ खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जैसे कि मैंने कहा था, इस पे जवाब खवातीन देंगे क्योंकि वही कहते हैं ये तो होना जरूरी है और ये तो होना जरूरी है। सर खातिन की तरफ आने ही आखिरी सवाल का, फिर हम आपकी तरफ आ रहे हैं सवाल जवाब के लिए। सर एक सवाल है, ये रस्म रवाज की जिम्मेदार पार्टी है, यह मर्द औरत की जंग नहीं शुरू करना चाहता मैं, लेकिन ये हकीकत है कि जब हम रस्म रवाज की, जब हम मतलब शादी की तकरीबात होती है तो मेहंदी है और ना जो भी है सब कुछ होता है, वो अमूमन डिमांड खातिन की तरफ आती है, मर्द तो नहीं कहता कि मेहंदी लगाओ मुझे। क्या कहता है बताइए? वो तो कहता है जैसे लगा जा रहा है भाई रुको यार। अच्छा मैं इसको रिलेट करती हूँ, मैं पहले एक आपके सामने बात रखती हूँ, फिर हम रिलेट करते हैं। अल्लाह ताला ने रूह की 4 हालतें बताई कुरान में। पहली वो हालत है जिसमें मैंने और आपने सबने कहा था रसूल रब्बिकुम, अल्लाह के इज़्ज़त से वो बाद में याद नहीं से और उसी की मर्जी है। दूसरी हालत ये है जिसमें हम लोग अभी मुब्तला हैं, जिसे यहाँ की ज़बान में हम लाइफ, हयात, ज़िंदगी, ये सारी टर्म्स के लिए ये कहते हैं, यहाँ कंबाइन किए गए पैचर के साथ। तीसरी हालत वो होगी जिस वक्त हमारा वेटिंग एरिया होगी, मेबी लीन और मेबी से जी, अल्लाह ताला हमें अच्छी जगह पे ही रखे, वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है हमने यहाँ कैसा परफॉर्म किया। और फिर फाइनल है, फाइनल डेस्टिनेशन है, इंशाल्लाह वहाँ पे भी अल्लाह यहाँ अच्छी हालत में रखे। मैं ये बात यहाँ पे इसलिए रखती हूँ कि ये जो दूसरी हालत है ना, जिसे हम कह रहे हैं कि हम हयात में मुब्तला है, जिंदगी जिसमें हम मैटर के साथ कंबाइन किए गए हैं, आप पूरा कुरान पढ़ लें, पूरी सीरत पढ़ लें, आपको वैल्यूज मेंटेन करनी हो, आपको सोसाइटी बनानी हो, पर्सनालिटी डेवलप करनी हो, खास एरियाज को डेवलप करना हो, बस ये भी याद रखना है कि ये जो दूसरी हालत है, ये जो दुनिया है, ये काम की दुनिया है और यहाँ वो नजर आएगा जो काम करे। काम करना पड़ता है। अगर हमें ये लगता है कि लैक कर रही है चीजें तो उस पर काम करना पड़ता है। अगर यकीनन सभी इस नियत के साथ नहीं कहा होगा, लेकिन मर्द भी अपनी अगर जिम्मेदारी अदा करे, जिस तरह से बाकायदा दूसरी चीजों में सख्ती के साथ ऑर्डर जारी किए जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर घरेलू जो खवातीन है वो अपनी लिमिट से आगे बैठ के कुछ उनको डिसओबे करेंगी। काम करना पड़ता है ना। इसी तरह से जो यूथ है, मेरे मुशाहिदे में तो ऐसी भी बच्चियां हैं सिंपल, मतलब मैं शादी में गई हूँ, मैं दुल्हन को ढूंढ रही हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत ही मतलब सादा ड्रेस उसका, जैसे हमारे कुर्सी में हर सुबह होते हैं उस तरह का नहीं। उसने कहा नहीं टीचर मैं दोबारा इसको पहन नहीं सकती है ना, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए, और अपने हाथ से उसने खुद मेकअप किया हुआ और बहुत सुकून से, किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, बच्चे आगे सोच रहे हैं इस तरह। इसी तरह से एक और कपल को देखा, उन्होंने पेरेंट्स को समझाया कि जितना आप हमारी शादियों पे खर्च करेंगे, जो हमें आप जेवर गहने देंगे, वो हम देंगे, हमें बाहर की तालीम हासिल करनी है। लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, काम की ना कुछ झलकियां नजर आने लगी हैं, लेकिन संजीदा होना पड़ेगा ना। मैंने आपसे असल मसला सिर्फ ये है कि वो जो हमें वो जो इंजेक्शन लगे हुए ना सुकून के, वो जो हमें टर्म्स बोलना आ गई हैं, वो जो हम कोट करने लग गए हैं आयात को और अहादीस को, बगैर उसकी हकीकत को जाने, बगैर मेहनत किए, उसने मसला क्रिएट किया। काम करें अपने ऊपर, काम करें सोसाइटी के ऊपर। ऐसी अल्लाह की सुन्नत ही नहीं है कि सोसाइटी को तलाश हो और अल्लाह ताला जो है रिजल्ट ना दे, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम सवाल जवाब की तरफ जाएंगे। क्योंकि एक बात कविया ने कहा कि मर्द ऑर्डर दे, मुझे नहीं पता कि आप क्या ऑर्डर कौन दे सकते हैं, हमारी तो हिम्मत नहीं है। सर से पूछे, सर आपकी हिम्मत नहीं है? पास किया है उन्होंने। अहमद साहब, आप निजाम बैंक में तो ऑर्डर दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, तो ये पॉलिटिकल इश्यूज है। नहीं, लेकिन ये बात सही है कि अगर के दोनों ने काम करना है, बेहतरीन की जिम्मेदारी है, वालिद की जिम्मेदारी है, उसने अगर अपना हिस्सा नहीं किया तो वैसे हम जी को लाइव हैंडल कर रहे हैं और अहमद साहब ने लाइव घर में भेजा भाई के, तो क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, हमारा किधर समझ में आती है। अब जो आपने बताया कि जो हमारा दौर था, उसमें टेलीविजन में एक हदीस आती थी
और वो हमें रेडी भी है कि बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें सबसे बेहतरीन लड़कियाँ अच्छी तारीफ है। आप बेस्ट से फलसफे उठा के ले आए, मैं भी मान लेती हूँ, ठीक है। हमारे भी स्कॉलर्स ने कहा कि माँ की गोद जो है वो बेहतरीन तरबियत का है और वो जाएगी तैयार की और सब कुछ हुआ, लेकिन बात आपकी नहीं, मैं बता नहीं चल रहा, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो चीजें आगे बढ़ती है ना, जैसे अभी सुरैया ने एक जिक्र किया एक शादी का कि उधर कहीं उधर इन्होंने जो लड़की को देखा वो एक अच्छे सादे लिबास में था। सर ने भी साहब ने भी जिक्र किया एक वाकई का जिसमें लोग खड़े हो गए, काम करने लगे। मुझे अपने मीडिया से हमेशा इख्तलाफ ये रहा है कि जो मुस्बित खबरें होती हैं, जो ऐसी चीजें जो माशरे को दिखा रही होती हैं, वो हम नहीं दिखाते, हम नेगेटिव दिखा रहे होते हैं। हम मीडिया में उन रस्म रवाज को दिखा रहे होते हैं मॉर्निंग शोज में, जिसमें हम दौलत का अंबार और गैर जरूरी रस्म रवाज और दिखाते हैं, उसके नतीजे में हमारे माशरे में मायूसी फैलती है। तो ये इख्तिलाफ मेरा मुस्तकिल है, गुज़श्ता 27 साल से इसी पर आ रहा हूँ, देखिए कब तक करता हूँ। सवाल जवाब की तरफ आते हैं। आप लोगों में सवाल ले जाने हैं, सवाल है ना? ये वकास जी अच्छा, हमारे साथ हाफिज़ा मरियम मौजूद है। मैं झुके से पहले बात नहीं हो सकी थी, पहले फाइनल हो गए थे। हाफिज़ा मरियम माशाल्लाह सोशल साइंस से वाबस्ता रही हैं और मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी रही हैं, आशिक जो इदारे में वो तारुफ कराएंगी और बहुत अच्छी स्पीकर हैं और इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छी तरबियत लोगों की है, बच्चों की नहीं है। नहीं, मैं बच्चों के बिल्कुल सवालात का वक्त तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगी। इस टॉपिक पे यहाँ आना जाग रहे ना वैसे आपको, ठीक? आवाज सुनाएंगे? अच्छा, तो मैं बहुत शायद यंग लग रही होंगी इस वक्त, तो यूथ की नुमाइंदगी भी है और इस तरफ भी मैं हूँ, ऐसा नहीं है। तकरीबन 8 साल से आप लोगों के साथ में मौजूद हूँ। सिर्फ एक बात पर मैं इस गुफ्तगू को शायद अपनी समअप करना चाहूँगी कि असातिज़ा की और तलबा की बात हुई। शायद मेरी ज़िंदगी का इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है। मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ शायद अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ। और आज यहाँ पर भी क्योंकि यूथ का वर्ड है मौजूद, तो उसकी वजह से मैं यहाँ मौजूद आपको नजर आ रही हूँ। बहुत ही इंतहाई क्या कहना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि तकरीबन भी मैं 10, 15, 20, 25 हज़ार तलबा पढ़ा चुकी हूँ आज तक, और क्योंकि टीचर ट्रेनिंग से वाबस्ता हूँ तो तकरीबन टीचर ट्रेनिंग में भी मैं ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार टीचर्स को तो पूरे पाकिस्तान में ट्रेन कर चुकी हूँ। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट देती हूँ कि पाकिस्तान में अगर कुछ बचा है पॉजिटिव तो वो सिर्फ या तो तलबा है या असातिज़ा है। ये वो वाहिद लोग हैं जो आज भी अपने इक़्तिदार में कायम हैं। बच्चे जितनी असातिज़ा की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं शायद उसके लिए जितने भी अल्फाज इस्तेमाल कर दूँ ना वो अल्फाज करूँ। तो आप सबके लिए बहुत 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 तालियां होनी चाहिए, प्लीज डू दैट। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर ये दो लोग अपनी जिम्मेदारी समझ जाएं तो उम्मत भी ठीक है, सब ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस की बात नहीं करती हूँ, और दो आई एम हाफिज़ कुरान और ये सारी डिग्रीज जिस पे बात हुई है वो सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में मैं बहुत होपफुल हूँ। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ अगर इनकलाब पसंद है, आप लोगों को पसंद है ना इनकलाब, तो इनकलाब अगर कोई लाएगा तो वो सिर्फ 2 ही लोग ला सकते हैं, हमेशा वही लाए हैं वैसे तो, ठीक है ना। हिस्ट्री उठा लीजिए, सर सैयद, अभी अल्लामा इकबाल की बात हो रही है, सर सैयद का अलीगढ़ और नदवा और ये सारा कुछ भी हमें पता है ना मौजूद है। तो अगर कोई बदला है उसका भी तो सिर्फ असातिज़ा और तलबा, बस इसके बाहर जिंदगी में कुछ है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, बड़े माहिरीन बैठे हैं अभी, तजुर्बे के हिसाब से भी थोड़ा पीछे हूँ, लेकिन मेरा एनालिसिस आज तक यही पहुँचा है कि हम कर रहे हैं, करके दिखाएंगे और कर ही चुके हैं, राइट। तो बस आपसे छोटी सी एक बूढ़ों वाली बात भी कर दूँ कि हमने माना के तगाफुल ना करोगे, क्या हमने माना के खाक हो जाएंगे तुमको खबर नहीं होगा। वी नीड यू, प्लीज डू दैट, वी नीड यू वेरी मच। आपकी बहुत शदीद ज़रूरत है, साथ से आपको उनका हाथ थामने की ज़रूरत है, जो कि आप ऑलरेडी थामे हैं। बस थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ को, चीज़ों को कर आके अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो ज़रा ना हो तो ये मिट्टी और वो सरफेस है, मैं इस बात को मानती हूँ। और अगर आप बस आगे बढ़ेंगे, और हम तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, मैं डॉक्टर साहब सुरैया से भी चेयरपर्सन यहाँ मौजूद हैं, और बाकी भी लोग असातिज़ा ही हैं, मेरा तो ख्याल है, जो पढ़ना लिखना सिखा दें किसी को, बस वही असातिज़ा है ना। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल, सो बेस्ट ऑफ लक यू, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल, प्लीज प्रोसीड फर्दर, थैंक यू सो मच। मैंने तो सुनिए हाफिज़ा मरियम साहिबा, मैं
से इत्तेफाक करता हूँ, सिर्फ एक आपको नसीहत करता हूँ कि जो आपने कहा ना कि मैं जो जिंदा हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, नहीं, आप बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी जिंदा रहें, अपना भी मतलब आपको भी जिंदगी अच्छी तरह गुजारने का, एंजॉय करने का हक है और जरूर करें। दूसरी बात ये कि यहाँ चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट है और आप सबको टीचर ही बनना है, और ये सारी मैं अपनी बेटियों से और एक तो बेटे हैं उनसे कहता हूँ कि हाँ, वो पता नहीं बाहर नजर आ रहे हैं, एक दो तो हैं शायद, तो उनसे भी ये कहता हूँ कि जैसे यहाँ जिक्र हुआ तालीम तरबियत वगैरह का, तरबियत हमने ये नहीं बताया, देखिए तरबियत बताने से नहीं होती, तरबियत आप खुद को करके दिखाने से होती। आप ये कहें कि जी मैं ये कहता रहूँ अपनी औलाद से कि भाई झूठ बोलना बुरा है, और उससे कहूँ अगर कोई दरवाजे पे दस्तक हो तो उससे कहूँ जाके बोल दो अपने घर पे नहीं है, तो ये तरबियत नहीं होती। तरबियत तो कहने से नहीं होती, अमल करने से होती है। अगर मैं अमल करके दिखाऊँ तो उसमें मेरा नुकसान ही हो जाए तब होती है। बहुत शुक्रिया सर। सवाल जवाब के लिए वकास हमारे एमएफएम प्रोडक्शन के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, माइक लेके हाथ उठाइएगा, अपना नाम बताइएगा, सवाल कीजिएगा। 15 मिनट का सेशन है हमारा ये सवाल जवाब का। उसके हवाले से कि हमारे ईस्टर्न कल्चर में पुराने समय से एक रस्म रिवाज चलती आ रही है, सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। तो क्या ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है हमारे इस्लाम में ठीक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली में 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी होती है, आपने मैरिज की जो स्पाउस आती हैं वो जो दूसरे वाले बेटे हैं उनके लिए नाम हैरम है, और वो भी उनके लिए नाम हैरम है सिस्टर इन लॉ के लिए ऑब्वियसली। तो अब हम ये कहते हैं कि आप सेपरेट फैमिली अपनी स्टार्ट करें तो सेपरेट हो जाएंगे, दोनों बेटों की शादी हुई, दोनों अपने अपने स्पाउसेस के साथ अलग हो गए, ठीक है। अब पीछे जो माँ बाप बचे हैं तो माँ बाप की खिदमत के लिए ये भी फर्ज आया है इस्लाम में कि माँ बाप की खिदमत की जाए। तो माँ बाप की खिदमत के लिए कौन है? बेटे तो चले गए, बेटों की जिम्मेदारी है, जिसकी बहू की जिम्मेदारी है ये वो बेटों की जिम्मेदारी है, तो बेटों के लिए कौन बचे? तो यहाँ पर एक आ जाता है कि आप उन्हें या तो ओल्ड एज होम में भेजें या उनके लिए मेड रख दें। तो ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट है ये तो हमारा वेस्टर्न वैल्यूज की तरफ ले जाता है ना फिर, तो इसका क्या सॉल्यूशन है हमारे लिए? उसूल बता दूं, शरई उसूल ये है कि जिस खातून की भी शादी होती है उसका हक है कि वो ये मुतालबा करे कि मुझे अलग घर में लेके दिया जाए, चाहे वो तुम दोनों का ही। लेकिन हमने और अमरन जो है, जो अमली तौर पर मसाइल आते हैं, तो ये है कि मेरे ख्याल में कुछ अरसे जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, जब तक कि उसके बच्चे छोटे हैं तो उसको रहना चाहिए, और इस्लामी अखलाक की पाबंदी करते हुए। जाहिर है उसमें कुछ मसाइल तो होंगे। जहाँ तक ये है कि वालिदैन का, जैसे कि आपने कहा कि वालिदैन की खिदमत करना जो है वो तो जाहिर बेटे का फर्ज है, बहू का नहीं है, लेकिन 12 बहुएं करती हैं खिदमत, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और जाहिर है अल्लाह ही उसका अजर दे सकता है। लेकिन शौहर को यह हक नहीं है कि वो अपनी बेगम से ये मुतालबा करेंगे तुम मेरे वालिदैन की खिदमत करो। लेकिन 12 हमारी ये अख्तार है, यानी ये इस्लामी हुक्म नहीं है, लेकिन हमारी ईस्टर्न यानी वैल्यू है कि बहुएं जो हैं वो सास ससुर को भी अपने माँ बाप के बराबर भी समझती हैं और उतना ही उनका ख्याल रखती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे आपने कहा कि फिर वालिदैन, तो अगर उनके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं तो उस वक्त तक तो मसाइल हैं, वो एक एक करके अलग हो जाए, लेकिन आखिरी बेटा तो रह सकता है ना माँ बाप के साथ, कोई एक बेटा तो रह सकता है माँ बाप के साथ, उसमें तो कोई पर्दे का किसी चीज का मसला नहीं होगा, और वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सकता है। उसको ओल्ड एज होम में दाखिल कराने की जरूरत नहीं है वालिदैन को, और बहू को भी ये नहीं है कि जी वो उस बहू को भी क्या मतलब सास ससुर जो है वो बमंजिल माँ बाप के ही होते हैं, तो लिहाजा कोई इससे मसला पैदा नहीं होगा। मतलब बहुत प्रैक्टिकल होके बात करें तो वी आर गोइंग टू डिजाइन एग्रीमेंट, निकाह एग्रीमेंट है ना, तो आप उस एग्रीमेंट के वक्त पे अपनी बात करेंगे ना पूरी, जो लोग नहीं रख सकते, जो नहीं अलग हो सकते, ये बात भी सामने आ जाएगी।
ये एक नाजायज प्रेशर होता है कि निकाह के वक्त अच्छा रिश्ता देख के लोग हाँ कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं तो कहते हैं कि मेरा इस्लामी हक मुझे अलग कर दिया जाए। एग्रीमेंट की बात करें, ठीक है, आपका क्या तय हुआ था, क्या नुकात थे जिसकी बेस पे आपने किसी को पसंद किया या आप किसी को पसंद किया? एहसान नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एहसान तक तो जाते कोई बात ही नहीं होती कि माँ बाप को ओढ़ने में रख दो, ये तो ये सवाल उतना ही नहीं था अगर एहसान तक जाते हो। दूसरी बात ये है कि मेरा दीन जिसने दरवाजा खटखटाने तक की तमीज सिखाई, जिसने ये बताया कि वो जो पड़ोसी मतलब तुम्हारे पड़ोस में आके बैठ के अगर कोई सफर तय कर लेता है आधा एक घंटा, तो वो भी तुम्हारे उसके भी तुम पे हुकूक हो जाते हैं, वो तुम्हारा हमसफर बन गया। वो ये कैसे कर सकता है बेटा कि वो ज़ईफ माँ बाप के लिए बात डिजाइन करे, सोसाइटी उधर जाए कि वेस्ट से फिलॉसफी लाई जाए और फिर हम उनके लिए ओल्ड डिजाइन करें, ये कैसे हो सकता है? सवाल खुद से उठाए ना, सवाल भी खुद से उठाए। बस समझने की बात ये है कि जो घर है ना, वहाँ प्रोडक्शन होती है, वहाँ तामीर होती है शख्सियत की, वहाँ जबर का माहौल नहीं होता, वहाँ बहुत मनफी चीज़ें नहीं होती। हमें थोड़ा जहन खुला रखना पड़ता है, ये बड़ा नॉर्मल है कि किसी के बच्चे बड़े हुए और परिंदे उड़ गए, दिस इज वेरी नॉर्मल, लेकिन चीज़ें जो है ना स्मूथली चलनी चाहिए और उसमें जो है वो किसी की हम तलफी नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा जब अगर तुमने फैसला कर लिया था कि तुम्हें KU इस डिपार्टमेंट में आना है, कोई तुम्हारे रस्ते की दीवार रख सका? तो एक दफ़ा जब मैं ये फैसला कर लूँ कि मेरे या मेरे शौहर के माँ बाप नहीं जाएंगे उधर, तो फिर जिंदगी उसी तरह से डिजाइन होती है ना। बात सारी है कि लेके कैसे चलना। ठीक है ये सवाल। अच्छा, इसमें फिर सर ने कहा कि सास ससुर भी माँ बाप की हैसियत में ही होते हैं, वही समझना चाहिए। तो उसके साथ दूसरी बात ये होती है कि आपको उनकी उतना ही उसका सवाब मिलता है, उतनी उनकी दुआएं भी मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, और सास ससुर को भी बेटी समझना चाहिए। ठीक है, फिर तो खुश हो जाए। ठीक, मेरा नाम बताइएगा। तो मेरा नाम नाज़िश है सर। एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी मैं अपने ऑनरेबल स्पीकर्स की कि आई थिंक आई डोंट नो हाउ फार यू विल एग्री विद मी कि जो टीचर्स या असातिज़ा का एक जो मेन फोकल पॉइंट होना चाहिए आजकल, वो सक्सेस की डेफिनेशन बताने होना चाहिए स्टूडेंट्स का, क्योंकि हम इसमें कितने फैंटेसाइज सक्सेस को देख रहे हैं और वही हमें कहीं ना कहीं से डिलीवर हो रहा है। प्लस एक और चीज की ईस्टर्न वैल्यू और इस्लामिक वैल्यूज की डिमार्केशन का हम हमेशा ईस्टर्न वैल्यूज को गलत दोहराए पे समझ रहे हैं, सिमिलरली हम इस्लामिक वैल्यूज को भी गलत दोहराए पे समझ रहे हैं। तो आई थिंक कहीं एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। इस चीज को प्लीज जरूर आइडेंटिफाई करें कि सक्सेस रेट जो है वो क्या हमारा खाली एक ह्यूमन कैपेसिटी या एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए या फिर इट शुड बी फॉर द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मेरा ख्याल है इसका जवाब आना चाहिए कि इस्लामिक वैल्यूज ईस्टर्न वैल्यूज क्या है। लेकिन पहले तो मेरी जहन में पहले मैं सक्सेस बता दूं ना, हमें से हर एक का एक प्रोफेशनल गोल है, मतलब कोई टीचर बनता है, कोई डॉक्टर है, कोई बैंकर है, कुछ भी है, और एक अल्टीमेट गोल है जो अल्लाह की तरफ से डिजाइन हुआ है कि लोगों हमने तुम्हें क्रिएट किया, तुम्हें भेजा, तुम्हें तख्लीक किया, और इसका मकसद इसके सिवा कुछ नहीं है कि तुम जाके उस जमीन पे निज़ाम बनाओ जो हमारा है, हमारी जमीन पे हमारा निज़ाम बनाओ। तो ये अल्टीमेट गोल जो है ना, इसका ताल्लुक है फिर सक्सेस से। ठीक है, दुनिया में आप कुछ भी हैं, और बिल्कुल आपकी बात सही है कि उस्ताद को इसको डिलीवर करना चाहिए, उस्ताद भी इसे एक्सप्लेन करेगा। हम लोग आज बात कर रहे थे वैल्यूज के ऊपर। सक्सेस इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू स्किल्स, और स्किल्स की फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में। जितनी भी वैल्यूज या रफ्तार है ना, ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, इसके बगैर नहीं होगा। नरम पूरी चाहिए होती है बैंकर को, तब जाके वो अपने कुलीग को लेके चल सकता है ना। एक मैनेजर और एक लीडर में फर्क कहाँ से आता है? जब वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स को मेंटेन करता है। सॉफ्ट स्किल्स मेंटेन होती है तो ओवरऑल की सक्सेस की बात होती है। अच्छा, ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ये जो मशरक़ी अक़दार और इस्लामी अक़दार, मैं फिर ये कहूँगी अम्ब्रेला क्या आएगा बेटा? मैं तो नहीं मानूंगी जहेज की रस्म को, इवन तो कि वो ईस्टर्न वैल्यूज में आएगा। क्यों? इसलिए कि जो फिल्टर है ना इस्लाम की से अम्ब्रेला उसको सेट करिए, इस्लामिक वैल्यूज को, नजरिया को, आइडियोलॉजी को, उसको देखिएगा। उसके अंदर हम तो मिक्स प्लेट हो गए थे। अगर याद हो, अब तो आप लोग तो बड़ी अच्छी जनरेशन है, आपने बहुत सारी चीज़ों से जान छुड़ा ली। हमारे दौर में तो शादियाँ होती थी तो बूढ़ी नानियाँ दादियाँ जो है ना, वो दुल्हन का आके हार ऐसे ऐसे करके देखती थी, मतलब तोल के ये पता चले कि कितने तोले का है। अब तो क्या हो गया है, आर्टिफिशियल मैचिंग ज्वेलरीज होती है,
جان چھوڑ गई, दिया दिए नहीं दिया किसी को नहीं पता होता. बहुत सारी तब्दीलियां आ भी गई हैं, लेकिन फिल्टर जो होगा ना वो इस्लाम करेगा. इस्लाम के दायरे में जो चीज आती है वो एक्सेप्टेबल है और ईस्टर्न है तस्लीम करेगा, नहीं आती ईस्टर्न है तब भी हमें तस्लीम. जी और कोई सवाल? बस थके अभी तो सर सबर की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल आ रहा था सबर मुझे नजर आ रहा है, सबर से बैठे हुए सब लोग, और आप एहसान की बात नहीं कर रहे तो एहसान भी कर रहे थे. और कुछ क्या ये जो सक्सेस की आपने बात की ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस सक्सेस को सही डिफाइन करें. और अब अगर हम लिस्ट बनाएं कि किसी के नज़र में सक्सेस ये कि मैं एप्पल का जो होता ना ओनर, उसका नाम पता है? एप्पल जिसने बनाया था, हाँ स्टीव जॉब्स. जब वो आखिरी दिनों थे ना उसके, तो उसने उसकी एक कोट है बड़ी फेमस है, वो जरूर पढ़िएगा, कि उसने दुनिया का वो अमीर तरीन आदमियों में से था, और उसने उस वक्त ये कहा था कि ये सारी जो दौलत है ना जो मेरे पास है, ये मैं इससे शायद अपनी जिंदगी के लिए एक मजीद सांस या एक मजीद मिनट नहीं हासिल कर सकता. और पैसा तो बहुत था, लेकिन उसकी अगर पर्सनल लाइफ उठा के देखें तो इट वाज अ डिजास्टर. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि खाली पैसा सक्सेस नहीं है, खाली शोहरत सक्सेस नहीं है. सक्सेस बोलिए, जब मैडम ने भी कहा कि अगर ये तय कर लें कि कुछ भी काम करना है या काम नहीं भी करना, घर में भी रहना है, तो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा ही सक्सेस है. आज अगर मैं मीज़ान बैंक में हूँ तो मीज़ान बैंक इसलिए अच्छा नहीं है कि ये एक बैंक है, बैंक तो बहुत सारे होते हैं. बैंक होना तो एक्चुअली बुरी बात है. नहीं, हमारे माशरे में बैंक क्योंकि सूदखोरी से वाबस्ता चीज थी, तो बैंकर होना तो एक बुरी बात है. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिसमें हमें अल्लाह ताला ने ये अकल दी और एहसास दी और हिदायत दी कि हम एक नॉर्मल बैंक नहीं बने, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए एक ऐसा बैंक बनाए जो अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पे काम करते हुए इस्लामी माशी निज़ाम को लाए. तो हमारी सक्सेस क्राइटेरिया ये हुआ कि आज मीज़ान बैंक का नंबर 1 होना सक्सेस नहीं है, बल्कि इस बात पे सक्सेस है कि हम पाकिस्तान से सूद का खात्मा करके अल्लाह ताला को राज़ी कर दें. तो ये सक्सेस है. इसी तरह अगर आप टीचर हैं तो आपकी सक्सेस ये कि आपका बच्चे जो है वो अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान, अच्छे शहरी बने. आप एक वालिदा हैं तो सक्सेस ये कि आपके बच्चे जो बच्चों की तरबियत अच्छी हो. एक बहन है तो सक्सेस कुछ और है, एक माँ है तो सक्सेस कुछ और है, एक बेटी है तो सक्सेस कुछ और है. तो हमें सक्सेस के वेस्टर्न पैरामीटर के अलावा पहले अपने जो सही पैरामीटर्स हैं वो हासिल करने. अभी मैं कल इत्तफाक से हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल 2 दिन पहले मैंने पढ़ा. उन्होंने कहा कि हम सब जो है ना, वो हम सब मेरे समेत हम सब क्या है, हम सब यानी अगर हम दिनों का मजमूआ है, उन्होंने इस तरह से कहा. और हर गुजरे हुए दिन से हम अपनी शख्सियत को खोते जा रहे हैं, यानी हम अपने एंड टाइम की तरफ आते जा रहे हैं. तो सक्सेस वो है जो इस दुनिया के टेस्ट और सफर में अल्लाह ताला को राज़ी कर दे, वो सक्सेस है. उसके लिए जो तरीका इख्तियार कर सकते हैं जायज़, वो उसी सक्सेस के लिए. एंड इन माइंड कुछ और, ये सब मीन्स है. श्री गावन हम से एंड टाइम की तरफ आ रहे हैं. बहुत अच्छा सवाल किया. सवाल के जवाब तो आई है सक्सेस के हवाले से, बहुत अच्छा जवाब दे दिया. एक और थोड़ा सा, क्योंकि आप सब को 12 टीचर बनना है, तो उस हवाले से उस पहलू से मैं अर्ज करता हूँ. हुज़ूर अकरम की हदीस का एक हिस्सा है कि जो काम आपके दिल को खुशी दे वो नेक काम है. यानी ये सवाल किया गया था क्या अच्छा काम है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है. उस हवाले से था कि वो अच्छाई है, वो भलाई है, वो नेक काम है. तो अब आप ने अपने शौक से ये शोबा चुना है और यहाँ से आप अच्छे नंबर लें या बुरे नंबर लें, लेकिन वो सक्सेस नहीं है. लेकिन अगर आप बहुत अच्छी टीचर साबित हों, बहुत अच्छी तरबियत कर सकें और उसके नतीजे में आपको खुशी हासिल हो, आपके दिल को खुशी हासिल, तो इसका मतलब आपने अपने प्रोफेशन में सक्सेस हासिल कर ली. ये एक सवाल है. बाकी आखिरत वगैरह के हवाले से तो मैं बताऊँगा. दूसरी बात ये कि
मुस्तफा साहब ने दावत दी आप ख़वातीन को कि आप सवाल करें, सवाल करें कम है तो मायूसी हो। तो मैं एक और आपको हदीस सुनाऊँ, और चूँकि आपका ताल्लुक यानी आइंदा इंशाअल्लाह शागिर्दों से पढ़ने वाला है, स्टूडेंट से पढ़ने वाला है, तो हुजूर की हदीस का एक हिस्सा है ये, और ये हिस्सा ऐसा है कि इस पर किताबें लिखी जा सकती, और अब ये 1400-1500 साल पहले कहा गया था, और ये वेस्ट में यही कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल करने की खूबी आधा इल्म है। आप इस वक्त स्टूडेंट हैं, आप सवाल करें, जरूर सवाल करें, इस बात से न डरें कि कोई आपके सवाल पर हंसेगा या क्या होगा, नहीं सवाल करें। और टीचर्स को चाहिए कि वो सवाल करने से ना रोकें और जवाब दें। इसी तरह जब आप टीचर बने तो आप भी अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में ये सलाहियत को उभारें कि वो सवाल करें, सवाल करने से ना डरें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सवाल हैं क्या कुछ? जी जी, दो चाहिए सवाल या तजवीज़ या कुछ भी कराइएगा। हमारा ये इस वक्त स्पीच में लाइव भी जा रहा है पूरा ये फोरम हमारा, तो हमारा चैनल है एमएचए स्पीच, आप देख सकते हैं और बाद में उसको देख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद लाहिर है, और जैसे कि हमारी चेयरपर्सन ने जो एक कहा था कि हम अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन भी दे रहे हैं, किसी हद तक स्किल्स भी दे रहे हैं, और जो कमी जहाँ पर है वो तरबियत पर है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि हमारी चेयरपर्सन इस हवाले से सोचती है बहुत, क्योंकि तरबियत की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं समझता हूँ कि बाकी डिपार्टमेंट्स की जो चेयरपर्सन शायद ही वो तरबियत के हवाले से फोकस होगा उनका। तो मैं ये अर्ज करूँगा कि अगर तरबियत के हवाले से जब कमी है तो हम क्यों ना कम से कम मंथली बेसिस पर हम एक तरबियती नशिस्त ही स्टूडेंट्स के लिए रख लिया करें, ताकि स्टूडेंट्स की तरबियत भी हो जाया करे और उनको जो एजुकेशन और स्किल सिखानी है वो भी उसके साथ साथ हो। अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैं से जवाब लेंगे हाथ के ऐलान कर दें। बिल्कुल, ये इनकी सजेशन जो भी इन्होंने दी है, और ये उसका ही हमने इसको इनिशिएट किया है। आज का जो सेमिनार है वो इसी सिलसिले में, और आइंदा के सजेशन को का ख्याल किया जाएगा और इस तरह से कुछ और सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, ये इंशाल्लाह ये अच्छी तजवीज़ है, और असल में ऐसे सेशंस के मकसद ये भी होता है कि बहुत सारी बातें सामने आ रही होती है ना, तो बहुत सारी तजावीज़ आ रही होती हैं, तो आपने कहा और इंशाल्लाह अमल होगा। और कोई सवाल पीछे कोई बच्ची कही थी, किसी और ने भी हाथ उठाया था, उन्होंने इनकार किया। जी कौन है ये? इधर बस सर मैं एक और चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ ऑनरेबल स्पीकर्स का, हमारे चेयरपर्सन का भी, कि एटलीस्ट एक होती है आउटवर्ड प्रेजेंटेशन, आपका आउटलुक। अगर हम आउटलुक की बात करें तो 99% ऑफ गर्ल्स हु आर वेयरिंग अ बाया एंड ऑल, बट आर दे रियली प्रैक्टिकली मोमेंट, डू दे नो द कोर वैल्यूज ऑफ ईस्टर्न एंड इस्लामिक वैल्यूज? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं एक मिसिंग पॉइंट रख रहे हैं, एंड दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो एरोगेंस तो शिफ्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स में, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट शिफ्टिंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, या एटलीस्ट यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें ये तो आइडेंटिफिकेशन हो कि हमारी कोर वैल्यू ऑफ इस्लाम क्या है, या हमारी कोर ईस्टर्न वैल्यूज क्या है, या हमारी कोर वैल्यू एज अ पर्सन क्या है। जब भी आज हम आउटवर्ड लुक से तो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बट क्या हम इनवर्डली मुस्लिम्स हैं, मोमिन हैं या नहीं? थैंक यू। ये बात हो चुकी है, और ये हकीकत है कि हम लोग मैंने कहा लिबास पे बात करते हैं, लेकिन मैं इस बार बार कह रहा हूँ कि हम जब भी बात कर रहे हैं ख्वातीन के लिबास की बात कर रहे हैं, ख्वातीन के पहनावे की बात कर रहे हैं, हम मर्द की बात क्यों नहीं कर रहे? मतलब हम लड़कों की बात क्यों नहीं कर रहे? हम ये बात क्यों नहीं करते कि लड़के को भी यही हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम्हारी नजरें भी नीचे होनी चाहिए, तुम्हारे लिबास की भी सदर है,
हम क्यों कहते हैं वो शॉर्ट पहन के घूम रहा होता है, हम यूनिवर्सिटी में देख रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, क्यों जाता है वो मार्केट में, क्यों जा रहा होता है? जब हम बात वैल्यूज की करेंगे तो हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है? वो सोच यही होता है कि जब भी हम पर्दे, हिजाब और बाउंड्रीज की बात करते हैं तो हम बर्निंग की बात करते हैं। मेरा ख्याल उसमें हमें आगे चलना चाहिए। ठीक, और कोई सवाल? मेरा ख्याल में सवाल नहीं है, आप हम चाहते हैं जी। सोच के सवाल। My name is Mitra and मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। As a student of teacher education department, मैं ये कहना चाह रही थी कि टीचर्स का क्या रोल हो सकता है कि वो इंस्टेंट वैल्यूज को प्रिजर्व कर सकें। I mean, considering the technology advancement and तो टीचर्स किस तरह इसकी रेलेवेंस को और इसकी सिग्निफिकेंस को प्रिजर्व कर सकें। मेरे ख्याल में उतनी रेस हम लोग यही करेंगे, तो टीचर इंटीग्रेट करेगा ना, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसकी अपनी पर्सनालिटी जो है ना उसके अंदर एहसास कमतरी ना हो। वो कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा लेकिन उसको इंटीग्रेट करेगा। मिसाल के तौर से मेरा मजमून केमिस्ट्री का, मैं इसकी बात करती हूँ। जब हम मैटर पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, फना है, हम एटम की तरफ आते हैं, वहाँ पे टीचर को डिलीवर करना चाहिए ना कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई से दो भी पीसेस 100% एक जैसे नहीं बना सकते। लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात है कि पूरी दुनिया के एलिमेंट डिफरेंट हैं, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स के मुख्तलिफ हो जाने, इलेक्ट्रॉन्स के मुख्तलिफ होने की वजह से। आपको पता चलता है यहाँ पे कितना अजीम क्रिएटर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तादाद बदलती है इलेक्ट्रॉन की तो मैटर के पूरा का पूरा नेचर ही बदल जाता है। ये टीचर का काम है कि वो इंटीग्रेट करे, पीछे से मेहनत करे ना। जब वो लेसन प्लान तैयार करता है तो उसको कैसे लेके आना है चीज़ों को। इंशाल्लाह आप में से लोग पहुँचेंगे वहाँ जहाँ निसाब तैयार किए जाते हैं, आप में से लोग पहुँचेंगे वहाँ जहाँ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो फिर आप उस जगहों पे भी इसको इंटीग्रेट कीजिएगा इंशाल्लाह। अभी भी लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है, काम तो बहुत हो रहा है। इंटीग्रेशन हमारा काम, आप कुछ नहीं पूछो। इसके लिए टीचर्स का जो रोल है वैल्यूज को प्रिजर्व करने में, उनको जैसे सर ने कहा प्रैक्टिकली उसको शो करना है, या रोल मॉडल के तौर पे हम यही कहते हैं टीचर का काम ही रोल मॉडल, उसके कॉल और फेल में फर्क नहीं होना चाहिए। तो अगर वो अपनी पर्सनालिटी से ये रिफ्लेक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स भी उसकी पर्सनालिटी से वही रिफ्लेक्शन देंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स टीचर का रिफ्लेक्शन होते हैं। और कोई सवाल मेरे ख्याल में कोई है? नहीं है, ऐसा आवाज आई है, खुदा के लिए खत्म कर दो। अच्छा आप मुझे तो वो जुगनू नज़म के अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, एक रोशनी का तालिब, एक रोशनी सरापा। अब हम ये अच्छा ये समझ आई। अच्छा ये हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं और मैं बता MFM प्रोडक्शन, हम उसका थोड़ा सा तारुफ पेश करेंगे आपके सामने। MFM प्रोडक्शन क्या करता है, हमारा मकसद क्या है, हमने ये क्यों बनाया। आज से 5 से 6 महीने पहले हमने इसकी बुनियाद रखी है और हम इसके साथ हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, जिसमें सेमिनार एक हिस्सा है इसका, बाकी भी कुछ काम है जिसमें आपका हिस्सा भी हमें चाहिए। इस हवाले से मैं अपनी मीडिया रिलेशन ऑफिसर हमारी सुमैया अख्तर दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और MFM प्रोडक्शन का तारुफ पेश करें। सुमैया अख्तर। मेरा नाम सुमैया अख्तर है और मैं यहाँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बतौर PhD स्कॉलर मुंसलिक हूँ और इसके अलावा MFM में मीडिया मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हूँ। अच्छा, MFM का इंट्रोडक्शन है मीडिया फॉर मासेस। MFM प्रोडक्शन एक ऐसा इदारा है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के शोबे में एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है। हमने समाजी मसाइल, इंसानी हकूक़, माहौलियात और दीगर अहम मौज़ूआत पर कामयाब इवेंट्स किए और दीगर प्रोजेक्ट्स मुनक़्क़िद किए हैं। हमारा मिशन माशरे में एक मज़बूत तब्दीली लाना और माशरे की तामीर और तरक्की में एक फ़ाल किरदार अदा करना है। थोड़ी देर के लिए खामोश रहें।
एमटेक प्रोडक्शन कई शोध पर मुश्तमिल है जिसमें वीडियो प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, इवेंट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी शोबे शामिल हैं। वीडियो प्रोडक्शन के जरिए हम कॉर्पोरेट वीडियोस, प्रमोशनल वीडियोस, सोशल मीडिया वीडियोस, वीडियो क्लिप एंड डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और समाजी फलाह बहबूदी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के मैदान में हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज फराहम करते हैं, जिसके जरिए हम अपने क्लाइंट्स के बिजनेसेस और ब्रांड्स की ऑनलाइन मौजूदगी को यकीनी बनाते हैं। अभी पिछले हफ्ते 10 सितंबर को कराची यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट में रीमैरिज के नाम से एमएमडो प्रोडक्शन ने एक फोरम मुनक्किद किया था और 10 से 12 अखबारात में जो है वो हमारी कवरेज गई थी और वो 3 टीवी चैनल्स थे जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को कवर किया था। तो मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह हम एयू में और मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के माशी और सकाफती और सोशली मौज़ूआत पर फोरम का इनेकाद करेंगे।